We'll take up the solutions for mathematics Jeemain 2017. Now, I have been told that there is only one code. Why? Because students of class 12th are less prone to cheating compared to class 11. So I will leave it upon you. So here we come. So it's problem number 31. 31 says that 31 ये कह रही देखिए limit n tends to infinity 1 plus 1 square upon n square into 1 plus 2 square upon n square all the way up to 1 plus n square upon n square to the power 1 by n. As can be seen, आप देख रहे that these numbers, they are all positive, and if you can see that, then this is nothing but limit of a sum. ये limit of a sum लिखा हुआ. How come? आप इसको कुछ a ले लीजिए. Take its logarithm, इसका logarithm ले लो. Like ln a, what's ln a? Log ले सकते हैं. Why these numbers are positive indeed. So what do you get? Limit n tends to infinity. और मैं लिख रहा हूँ. So 1 upon n. अब देखिए ये क्या हो जाएगा? ln. What's that? 1 plus 1 square upon n square plus ln 1 plus 2 square upon n square and all the way up to ln 1 plus n square upon n square, right? Which can be rewritten as, आप इसको वापस से लिख सकते हैं, limit n tends to infinity 1 upon n. Let it write its delimited form. इसका delimited form लिख दीजिए. ये क्या हो जाएगा आपका? ln 1 plus r upon n squared, where r runs from 1 to n. ये तो लिखा हुआ, right? Now you can see that there is nothing but Riemann sum. एक definite integral के लिए Riemann sum लिखा हुआ है. अगर n जा रहे infinity, this quantity will be very small. Compare कर लीजिए, you realize that there is going to be dx. ये dx होने वाला है. R upon n will be x. So this is your dx. ये है आपका dx. ये r upon n x हो गया, तो ये आपके पास आ गया ln 1 plus x square. Now lower limit, regarding lower limit आप क्या करेंगे? R की वैल्यू 1 पुट करेंगे, n is infinitely great. R की वैल्यू जब आप 1 पुट करेंगे, lower limit की वैल्यू क्या आ जाएगी आपको? 0. Upper limit, R की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? n, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी? n tends to infinity, n upon n is 1. Here is your integral. यहाँ पे आपका integral use by parts or use any other. If you want to use substitution, x is equal to tan theta. You will get the result. आप इस integral को solve करके निकाल लेंगे. Fine. All right. Moving on then. यहाँ से आगे हम जा रहे हैं. We'll take up problem number 32. Problem number 32 देखिए. So this problem says that ये problem कुछ ऐसे कह रही है that again you have a problem from indefinite integrals. आपके पास indefinite integral की problem है. It says fx is given to you as x upon 1 plus x to the power n and whole to the power n, and it's true for n is greater than or equal to 2. gx दे रखा है इन्होंने f of n times, ये बता रहे हैं ये n times है. Small mercies, right? Alright, so no, it's not difficult. बस देखने से लग रहा है पता नहीं n times में क्या होगा. No, don't do this. n से confuse मत होइए. I'll just ask you to find out what is f of x. एक बार f of x निकाल लीजिए. Now using this definition, f of x is nothing but fx upon 1 plus fx to the power n and whole to the power 1 by n. ऐसा कुछ हो जाएगा आपके पास? Replace fx by this quantity again. fx को इससे replace कर लीजिए. You will get x upon 1 plus x to the power n and whole to the power 1 by n upon what do you get here? यहाँ क्या आ जाएगा? 1 plus fx to the power n is की power n. तो ये हो जाएगा x की power n 1 plus x की power n and whole to the power 1 by n. Now अगर आप इसको simplify करेंगे, you will see that, आप देख लेंगे ना, simplification के बाद 1 plus x की power n to the power 1 by n denominator में ये cancel हो जाएंगे. So this after simplification becomes x upon what's that? 1 plus 2x की power n to the power 1 by n. Fine. So you have got a trend. Similarly, आप f of x मतलब f is 3 times, तो ये आ जाएगा आपके x upon 1 plus 3x की power n to the power 1 by n. In fact, this result can be proved using a principle of mathematical induction, but we won't go into this. We'll simply assume that कि ये जो gx दे रखा है उन्होंने, it's nothing but x upon 1 plus n, x की power n, 1 upon n. I encourage you to go back if you are in fact at home. So I encourage you to prove this result using principle of mathematical induction. Which might be handy in case of Jeemain. So now this problem becomes, अब ये problem क्या हो जाएगी? Integral. किसका integral वो आपसे पूछ रहे हैं? x की power n minus 2 gx dx. So which is what? This into this, which is x to the power n minus 1 upon 1 plus nx की power n 1 by n dx. ऐसा ही कुछ है. अब कुछ भी नहीं करना. If you realize it, this expression is nothing but the derivative of this. इसका derivative दे रखा है, कुछ भी नहीं, इसको t assume कर लीजिए. Assume this expression as t. So in one way or other, this will become some constant times dt. Fine. Evaluate this integral. ये integral evaluate करेंगे, आपके पास problem हो जाएगी, right? Moving on then to problem number 33. हम 33 पे आ जाते हैं. Now 33 is a problem from vectors. Vectors की problem है ये, right? And what do you have here? क्या है हमारे पास? Let's see. What does 33 say? 33 ये कह रही है कि that A, B, C are vectors in such a way. ऐसा कुछ दे रखा है. A cross
A cross B, in fact C, n plus B is equal to 0, where the magnitudes of A, B and C are given, दे रखा है. Then the acute angle between A and C, A और C के बीच में acute angle पूछ रखा है इन्होंने. Fine. What we will do here is that biggest magnitude दे रखा है. Why don't we try this? हम ये क्यों नहीं try करते? There are many ways to do this problem, of course. One of those ways could be, एक तरीका देखिए जो मुझे समझ में आता है कि like look at this vector A, this is A cross C. Of course A cross C is going to be perpendicular to A, नहीं? So अगर मैं आपसे बोलूँ कि दो वेक्टर्स इक्वल हैं तो क्या उनके मॉडुलस इक्वल होंगे? Of course. And mod of minus b, which is as good as mod of b, and mod of b is given to you as 1. Look at left hand side. दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट है, इसका और इसका क्रॉस प्रोडक्ट है, तो मैं लिख दूं इसका मैग्नीट्यूड इज नथिंग बट इसका मैग्नीट्यूड which is mod of a into इसका मैग्नीट्यूड which is mod of a cross c into sine of angle between these two vectors which is right angle. Why? Because a and a cross c are perpendicular, right? तो ये वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी? 1. अगेन यू नो दैट mod of a is 1. आप जानते हैं mod of a 1 है, दे रखा है उन्होंने. अब ये देखो यार, a क्रॉस c निकालना है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना, क्या लिख दे फिर? mod of a which is 1, mod of c which is 2 into sin थीटा, नहीं, where theta is the angle between them. ठीक है, तो देखिए sin थीटा की कुछ वैल्यू आ गई. क्या आ गई? sin थीटा की वैल्यू 1/2, which means थीटा की वैल्यू आ गई, क्या आ गया आपके पास? π/6. द acute angle. We haven't said that कि इन दो वेक्टर्स के बीच का एंगल π/6 ही होगा. No, हम ये कह रहे हैं कि acute angle π/6 होगा, and there is a distinction. Moving on to problem number 34, and I'm going to rub this off. So now 34 देखिए, मैट्रिक्स की प्रॉब्लम है. It says that a b is equal to a, ऐसा दे रखा है, and b a is equal to b, ये भी दे रखा है, right? All right. So what's a square? A square हो गया जाएगा आपके पास. Or can that be written as a times a, and a is nothing but a b? ऐसे लिखा जा सकता है? नहीं. A square is what? A times a, and it can be written as, yeah, ऐसे देख लीजिए. This is nothing but a times a, right? Now, which is nothing but, इस a को मैं रिप्लेस कर दूं अगर, if I were to, a times b times a, नहीं? अच्छा, this can be used, this can be rewritten as, आप इसको वापस से लिख सकते हैं. देखिए, a times, ये देखो, associate कर लीजिए इसको, b times a, नहीं लिखा जा सकता ऐसा, b times a. What's b times a? b times a क्या दे रखा है इन्होंने? b, so there is nothing but b, which is a times b. What's a times b? Nothing but a. So what's a square equal to a? Similarly, you can go ahead and prove that b square will be equal to b. आप ऐसे ही जाइए, encourage you to prove this, और b square b के equal आ जाएगा using same manipulations that we have used till now. Now, look at this quantity, a plus b square, in the matrix का square हो गया जाएगा. You'll say a square, fine, which is okay. Plus क्या आएगा फिर आपके पास? b square, ठीक है, plus ab, okay, all right, plus ba, which is fine. Now what's a square equal to? A square किसके equal है? Is that equal to a? Okay. What's ab equal to? ab किसके equal है? Is that equal to a? It's 2a, right? b square किसके equal है? Is that equal to b? What's ba equal to? b किसके equal है? Is that equal to b? So is that equal to 2b? So I'd like to believe that you are saying that a plus b square is equal to twice of a plus b. नहीं? So it would mean that either mod of a plus b is 0 or mod of a plus b is 8. Mod of a plus b can't be 0 because it's given in the problem. देखिए, it says that determinant of a plus b is not 0, hence determinant of a plus b must be 8, and we are done, right? So moving on to problem number 35th, in fact. What's 35th? 35th is nothing but calculation. If I were to tell you that you do need my help in order to solve this problem. So it says that y by x is something like log of x minus log of a plus bx, नहीं? I have taken the liberty of writing down things as I seem fit by using laws of logarithms. आप कर सकते हैं, x से divide कर लीजिए और वहाँ पे log की property use कर लीजिए, fine. Then they're asking you to find the value of x cubed d2y upon dx square, means the second derivative of y with respect to x. So all that you have to do is differentiate this with respect to x. इसको x के respect में differentiate कर लो. What do you get? क्या आ जाएगा देखिए आपके पास? It's x, differentiate this respect to x, dy dx, right? Minus y, इसका derivative 1 हो गया फिर, upon x square, all right? Is equal to, इसका derivative क्या आ जाएगा आपके पास? 1 by x, इसका derivative देखिए क्या आ जाएगा? 1 upon a plus bx into derivative of a plus bx with respect to x, तो b आ जाएगा आपके पास, नहीं? All right? So what do you get? क्या आ जाएगा आपके पास? So एक बार x square से multiply भी कर दो यार. So what do you get? x dy dx minus y, और ये वैल्यू क्या आ जाएगी? Multiply by x square से multiply कीजिए, ये क्या आ जाएगा आपके पास? x and minus ये क्या आ जाएगा आपके पास? bx square upon
a plus bx, ऐसे ही कुछ आ जाएगा फिर नहीं. Alright, so which when simplified, अगर आप इसको simplify करेंगे, don't you ये simply बचेगा आपके पास something like ax upon a plus bx, ऐसे ही कुछ बचेगा. Which is a nice expression, याद रखिएगा इसको. Why? Because you're going to use this further. आप इसको use करने वाले हैं. Because look, option number 1, एक बार option number 1 देखिए, it says x divided dx minus y. This is which it is, right? Now go ahead and differentiate again. इसको एक बार जाइए वापस से differentiate कीजिए. What do you get? क्या आ जाएगा आपके पास? So x आपने constant रखा, इसको differentiate किया. Second derivative of y with respect to x, something which you always wanted. इसको constant रखा, इसको differentiate किया 1, और फिर इसको differentiate किया. It's nothing but dy dx, वो cancel हो गया, right? इसको differentiate कर लीजिए. So इसको constant रखा आपने, इसको differentiate किया, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास? a plus bx, इसका derivative a minus इसको आपने constant रखा और इसको differentiate किया. इसको differentiate किया तो क्या आ जाएगा आपके पास? b नहीं, और इसको आपने ऐसे रख दिया, this is ax upon ये क्या आ गया आपके पास? a plus bx का square. ना देखिए ये bx है, ये bx है, ये दोनों cancel हो जाएंगे आपस में. So what do you get? क्या बच जाएगा आपके पास? Simply it's a square upon a plus b x square. नहीं, अब देखिए ये पूछ रहे हैं, they're not asking you to find the value of x cube, x divide x double derivative, x cube times the double derivative, x square से multiply कर लीजिए. So you'll get the answer. आपके पास आंसर आ जाएगा. So this, now this can be seen that there is nothing but this square, which is this square, and you have your answer. Fine. All right, moving on to the next problem, 36. I'm going to rub this off. मैं इसको rub कर रहा हूँ. Right. So 36 says that 36 says that alpha and beta are the roots of tan x is equal to 2x. The implication being, एक तो ठीक हो गया ना यार कि tan alpha is nothing but 2 alpha, and then tan beta is nothing but 2 beta. नहीं? Something that we already know. And then it's given that alpha and beta, they are positive. दोनों positive दे रखे. Fair enough. Minus 1 to 1 sin alpha x sin beta x. ये dx evaluate करना है आपको ना. आप जानते हैं क्या करना है. Sin a sin b है, 2 से multiply कर लो. If you want to evaluate this integral, तो मैं ऐसा कर रहा हूँ कि यहाँ से 2 से multiply करो. ये भी 2 से multiply हो जाएगा. Now what's this? 2 sin a sin b. 2 sin a sin b हो क्या जाएगा आपके पास? Now this can be rewritten as, आप इसको वापस से लिख सकते हैं. Look at this function. इस function को देखिए. I'm arguing that this function is an even function. How come? X की जगह minus x put कीजिए. This will be minus of sin beta x. X की जगह minus x put कीजिए. Minus of sin alpha x, which makes the function as even. तो मैं इसको नहीं लिख सकता 2 times of from 0 to 1. और अगर मैं 2 times लिखूंगा तो this 2 and that 2 they can be cancelled, which means that ये हो जाएगा आपके पास 0 to 1, and this what, ये क्या आ जाएगा देखिए आपके पास simply sin alpha 2 times of sin alpha x sin beta x and dx, ऐसा हो जाएगा. Now this is nothing but ये क्या आ जाएगा आपके 0 to 1. मैं इसको expand कर रहा हूँ. So this is what, cos of मैं लिख रहा हूँ alpha minus beta x plus cos of alpha plus beta x dx. नहीं, इंटीग्रेट कर लो इसको, इंटीग्रेट कर लो. क्या आ जाएगा देखो आपके पास? ये आ जाएगा आपके पास cos है, इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा? साइन. नहीं, साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा x. ऑफ कोर्स एक फैक्टर आपके पास अल्फा माइनस बीटा का तो आएगा ही आएगा, और ये विद इन लिमिट 0 to 1, और ये सिमिलरली ये हो जाएगा आपके पास 1 upon अल्फा प्लस बीटा साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा x विद इन द लिमिट 0 to 1. नहीं, अब when this is simplified, जब आप इसको simplify करेंगे, what do you get? मैं simply value लिख रहा हूँ. 0 पे ये दोनों वैल्यू 0 हो जाएंगी. So what you get is, तो आपके पास आ क्या आ जाएगा? Sin of alpha minus beta upon alpha minus beta plus sin of alpha plus beta upon alpha plus beta. So it makes sense when the question says that alpha should not be equal to beta. It does make sense, नहीं? Because नहीं तो ये क्वांटिटी डिफाइंड ही नहीं होती. ना आवर टास्क इज कि क्या हम इन दोनों इक्वेशन से कुछ निकाल सकते हैं. ऑफ कोर्स देखो आपको चाहिए क्या? अल्फा प्लस बीटा, नहीं, और क्या चाहिए? अल्फा माइनस बीटा. एक बार ऐड कर लो, दूसरी बार सबट्रैक्ट कर लो. यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास? व्हाट डू यू गेट? अल्फा प्लस बीटा है क्या आपके पास? इज इट 1/2 tan अल्फा प्लस tan बीटा? यही है. आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास? 1/2 इज इट sin अल्फा cos बीटा प्लस cos अल्फा sin बीटा? इज दैट sin अल्फा प्लस बीटा? नहीं, अपॉन ये क्या आ जाएगा आपके पास? cos अल्फा cos बीटा. Similarly, subtract कर लो इन दोनों को एक बार. So what's alpha minus beta? Alpha minus beta की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/2. And subtract कर लिया आपने तो ये क्या आ जाएगा आपके? tan alpha minus tan beta, which is nothing but 1/2 sin alpha minus beta upon cos alpha cos beta.
अब ये दोनों वैल्यूज अल्फा प्लस बीटा की और अल्फा माइनस बीटा की यहाँ पे पुट कर लीजिए, द आंसर विल बी 0, आपके पास आंसर 0 आ जाएगा। ऑलराइट, मूविंग ऑन टू प्रॉब्लम नंबर 37, हम 37 पे जा रहे हैं। सो 37 सेज दैट, देखिए 37 क्या कह रही है प्रॉब्लम, व्हाट डज 37 से, 37 क्या कह रही है फिर, दैट 37 says that, देखो 37 problem 37 says f g and the, will there be a equation which then this will have how many roots? So assume that, यार assume कर लो ना। I mean one of the ways of solving this problem could be, देखिए एक तरीका प्रॉब्लम को सॉल्व करने का हो सकता है कि मैं assume ही कर लेता हूँ भाई कि यार कि ये ट्रू ही है, assume that this is true, कि ये हो जाएंगे इसके रूट्स, फाइन। सो व्हाट हैपेंस देन, क्या हो जाएगा फिर, कैन वी इंटीग्रेट दिस, क्या हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं? ऑफ कोर्स, देखो उन्होंने दे रखा है f डबल डैश एंड g डबल डैश दे एग्जिस्ट एवरीवेयर, इंटीग्रेबल, एंड f डैश x g डैश x दे नॉन जीरो, इंटीग्रेट करो। डोंट यू एग्री ये जो है इसका डेरिवेटिव है, नहीं इसको t ले लिया तो ये क्या आ जाएगा आपके पास dt, तो ये हो क्या गया आपके पास, कैन दैट बी रिटन एज, आप इसको लिख सकते हो इंटीग्रल, इनफैक्ट मैं सिंपली इंटीग्रेट करके बता रहा हूँ, f वन ऑफ द वेज कुड बी दिस, मैं ऐसा कर दूं, नहीं आई एम अज्यूमिंग दैट दिस इज ट्रू, नहीं तो ये हो क्या गया आपके पास, इज दैट ln f डैश x ln f डैश x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, ln g डैश x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस ln c कर देते हैं हम कुछ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है, व्हाट डू यू गेट, क्या आ जाएगा देखो आपके पास, कैन दैट बी रिटन एज f डैश x इज इक्वल टू c g डैश x, ऐसा कुछ आ जाएगा, नहीं इंटीग्रेट कर दो, वापस से इंटीग्रेट कर दो, क्या आ जाएगा देखो आपके पास, fx इज इक्वल टू c g x प्लस सम अदर कांस्टेंट c प्राइम, नहीं अब नाउ आपको एग्जामिन ये करना है कि इन लाइट ऑफ द गिवन कंडीशंस कैन दिस कंडीशन होल्ड ट्रू, क्या ये ट्रू हो सकती है, व्हिच कंडीशन, द कंडीशन दैट fx into gx is true for all x and f dash x is non-zero, g dash x is non-zero for all values of x। एक बार पुट कर लेते हैं किसी में, लाइक मैं यहाँ पे gx की वैल्यू पुट कर लेता हूँ 2/fx, अगर मैं कर लूँ तो देखो ये क्या आ जाएगा आपके पास, fx को अगर मैं पुट कर लूँ c अपॉन और gx क्या आ गया आपके पास 2/fx, तो ये 2/fx प्लस c प्राइम, इसको सिंप्लीफाई करोगे, I'd like to believe that you will get a nice quadratic in fx, नहीं क्या आ जाएगा देखो आपके पास, fx का स्क्वायर माइनस c प्राइम fx माइनस 2c इक्वल टू 0 ना। अगर आप ये देखेंगे, डोंट यू एग्री दैट दिस इज अ क्वाड्रेटिक इन fx में क्वाड्रेटिक आ गया आपके पास, नाउ every other thing apart from fx is a constant, which means यहाँ से जो fx की वैल्यू निकल के आएगी आपके पास, it should be constant, which violates all these conditions. How come? अगर देखो fx constant हो गया, don't you agree that f dash x will be 0 every time, right? Which is a contradiction, which means that this condition can't hold true, which means that there is no root to this equation, and there is just one way to solve the problem. There can be many, right? Moving on then, आगे जा रहे हैं. So the next problem is 38. Yes, domain निकालने कह रहे हैं. Should be an easy pick, I'd like to believe. Log of, यहाँ पे कुछ मॉडुलस दे दिया x स्क्वायर प्लस x माइनस 6, और यहाँ पे कुछ ग्रेटेस्ट इंटीजर भी दे दिया इन्होंने. आप जानते तो हो यार कि दिस नंबर inevitably should be positive. हाँ, आप जानते हो कि ये नॉन नेगेटिव तो है ही है. So the only case where this might violate this whole thing is where this quantity will become 0. So all that you have to ensure is कि ये quantity 0 नहीं होनी चाहिए. नहीं, तो हम सॉल्व कर लेते हैं ये 0 कब होगी, एक बार चेक कर लेते हैं. x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0, ये 0 होने कब वाली है? तो कैन वी से दैट इज एक्चुअली x प्लस 3 इंटू x माइनस 2 इक्वल टू 0, मतलब या जब x माइनस 3 हो जाए या फिर x क्या हो जाए 2 हो जाए. फाइन, तो देखिए ये सारी चीजें हम अपने डोमेन में से हटाने वाले हैं. माइनस 3 एंड 2, फाइन, नोटेड. यहाँ आ जाइए, बेस है लॉगरिथम का, ये कब डिफाइन होता है? जब आपका बेस पॉजिटिव हो और बेस नॉट इक्वल टू 1 हो. अब कोई भी नंबर पॉजिटिव कब हो जाएगी? ये नंबर, किसी नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो पॉजिटिव होना है भाई, तो मैं कह दूं कि इसका मतलब वो नंबर क्या हो जाएगी आपके पास, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 हो जाएगी. नहीं, बट देखिए जैसे ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगी ये नंबर, तो जैसे ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगी, फाइन, ये पॉजिटिव हो गया. बट डोंट यू एग्री, जब नंबर आपकी 1 से 2 के बीच में लाई कर रही है, इंक्लूडिंग 1 एंड एक्सक्लूडिंग 2, अगर ये नंबर लाई कर जाए तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा 1. तो अगेन बेस क्या हो जाएगा 1, which will violate the condition. फाइन, तो मैं कह दूं कि यार ये नंबर जो है ना वो सिंपली क्या हो जानी चाहिए, ग्रेटर देन 2. कर दूं मैं ऐसा? ठीक है, कर देते हैं. तो x की कुछ वैल्यू आ गई, क्या आ गया, x क्या आ गया आपके पास, ग्रेटर देन 3/2. अब देखिए यहाँ से x ग्रेटर देन 3/2 है, यहाँ से आगे x, ये दोनों नंबर्स नहीं होने चाहिए. तो हमारे पास कोई ऐसा आंसर पिक कर लेना हमें जिसमें x ग्रेटर देन 3/2 हो और x 2 के इक्वल ना हो, which is one of the nice answers. It's option number 3, right? चलो, right, moving on then, हम आगे जा रहे हैं.
Moving on to problem number 39. 39 पे आ जाइए. It says that P and Q belong to R and P square plus Q square minus PQ minus P minus Q plus 1 is less than 0. Then evaluate the determinant blah. यार ये देखा आपने. I'd like to believe condition hit कर जानी चाहिए. Lagrangian inequality है, नहीं भी हम जानते, 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको थ्रू आउट. ये क्या बन जाएगा आपके पास? 2p square 2q square 2pq minus 2p minus 2q plus 2 less than or equal to 0. यही है. अब आप क्या करोगे? एक p स्क्वायर पुल कर लो यहाँ से, एक q स्क्वायर पुल कर लो और ये 2pq पुल कर लो नेगेटिव का, तो क्या बन जाएगा वो? p माइनस q का स्क्वायर. अब एक p स्क्वायर अभी भी बच रहा है, ध्यान में रखिएगा, एक q स्क्वायर अभी भी बच रहा है. अगर मैं एक q स्क्वायर ये माइनस 2q और यहाँ से 1 पुल कर लूँ तो वो क्या बन जाएगा मेरे पास? q माइनस 1 का स्क्वायर. एक p स्क्वायर जो बचा है वो ले लो, ये माइनस 2p ले लो, और एक जो 1 बचा है वो ले लो. अब आप देख रहे हैं पी क्यू सब कुछ रियल दे रखा है, तो ये सारे नंबर्स भी रियल होंगे. अब किसी भी रियल नंबर के स्क्वायर की लीस्ट वैल्यू क्या होती है? 0. तो इन सभी की लीस्ट वैल्यू क्या है? 0 है. और इनका सम दे रखा है लेस देन इक्वल टू 0. फर्स्ट ऑफ ऑल ये लेस देन 0 हो ही नहीं सकता. व्हाई? बिकॉज इन तीनों क्वांटिटीज की लीस्ट वैल्यू 0 है. नहीं, तो इसका मतलब इनकी लीस्ट वैल्यू 0, इनका सम लेस देन इक्वल टू 0 दे रखा है. तो ये तभी पॉसिबल है जब ये सारे सम किसके इक्वल हो जाए? 0 के. एंड इन दैट केस ये सारी क्वांटिटीज किसके इक्वल हो जाए? 0 के, व्हिच वुड मीन दैट कि p विल बी इक्वल टू q विल बी इक्वल टू 1. राइट. अब जो डिटरमिनेंट दे रखा है उसमें p और q की वैल्यू पुट कर लीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा. फाइन. मूविंग ऑन. चलिए आगे करते हैं प्रॉब्लम नंबर 40. 40 में क्या करें? या 40 में पूछा ना आपसे कि ये लाइन x माइनस 2/3 y प्लस 1/2 z माइनस 1/-1 कहाँ इंटरसेक्ट करे? किस कर्व को इंटरसेक्ट करनी है? x y इक्वल टू c स्क्वायर एंड z इक्वल टू 0. ठीक है यार, अस्यूमिंग एज लैम्डा, पैरामीट्रिक फॉर्म में लिख लो. इस कर्व पे लाई करने वाले, मतलब इस लाइन पे लाई करने वाले किसी पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स आप मुझे क्या लिख के बताओगे? 3 लैम्डा प्लस 2 नहीं, 2 लैम्डा माइनस 1 माइनस लैम्डा प्लस 1, ये तो बताओगे, है ना. और इस लाइन का इंटरसेक्शन इस कर्व से क्या चाहिए? तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो देख लो कि z की वैल्यू 0 होनी चाहिए. नहीं, तो अगर z 0 हो गया तो लैम्डा की वैल्यू आ गई मेरे पास. क्या आ गई? लैम्डा की वैल्यू 1. अब लैम्डा की वैल्यू 1 अगर आ गई आपके पास ना, तो ये दोनों पॉइंट्स भी फिक्स हो गए. नहीं हो गए x और y फिक्स. ये x क्या आ जाएगा आपके पास? देखिए लैम्डा 1 पिक करो 5, और ये क्या आ जाएगा आपके पास? अगर मैं लैम्डा की 1 और ये तो 0 है ही है. अब ये पॉइंट वो बोल रहे हैं कि इसका अप्लाई करना चाहिए. ठीक है भाई, ये 0 तो लाई कर ही रहा है. अब ये x और y की वैल्यूज भी इसको सैटिस्फाई करनी चाहिए. पुट कर दीजिए x 5 और y 1, तो क्या आ जाएगा? c स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5. तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी? प्लस माइनस रूट 5. राइट. एंड वी आर डन हियर. मूविंग ऑन देन, नाउ मूविंग ऑन टू प्रॉब्लम नंबर 41. 41 पे आ जाते हैं. Now 41 says that if angle A, देखिए एक triangle ABC दे रखा है where angle A is a right angle, नहीं? What else you need? You have got a right angle. अब क्या चाहिए बताओ? So moving on then, now that you have to find out, अब terminologies वही होंगी. A के opposite A, C के opposite small c, B के opposite small b. और ये पूछ रहे हैं कि ये tan inverse C upon A plus B क्या होगा? प्लस इनफैक्ट tan इनवर्स b अपॉन a प्लस c क्या होगा? अब देखिए फर्स्ट याद है कि यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर ले tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का. बट डोंट यू एग्री कि वहाँ पे एक कंडीशन होती है कि यार वो जो फॉर्मूला है x y लेस देन 1 ब्ला x y ग्रेटर देन 1 क्या यूज करेंगे? यहाँ पे आसान है ना, बिकॉज x y लेस देन 1 ही होने वाला है. क्यों? बिकॉज आप जान रहे हैं दैट दिस रेशियो इज इंडीड लेस देन 1. क्यों? एक साइड है अपॉन सम ऑफ 2 साइड्स है, लेस देन 1 होगा. ये एक साइड है अपॉन सम ऑफ 2 साइड्स है, सम ऑफ 2 साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड साइड. तो ये फॉर्मूला वहाँ पे आराम से यूज कर सकते हैं. राइट, लिख लीजिए फिर. ये हो गया जाएगा आपके tan इनवर्स फॉर्मूला यूज कर लीजिए. tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का वेयर x y इज लेस देन 1, तो क्या हो जाएगा? x प्लस y लिख रहा हूँ मैं, c अपॉन a प्लस b, b अपॉन a प्लस c अपॉन 1 माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट c अपॉन a प्लस b इनटू b अपॉन a प्लस c. यही आ जाएगा फिर. नहीं, अब देखो व्हाटएवर वर्क रिमेन्स, जो बच रहा है काम, वो किसका बच रहा है? सिंप्लीफिकेशन का, व्हिच यू आर एक्सपेक्टिंग मी टू डू. नहीं, सो एक बार सिंप्लीफाई कीजिए. व्हाट यू गेट? ये हो क्या जाएगा? देखो ac प्लस c स्क्वायर प्लस ये क्या आ जाएगा आपके पास? ab प्लस b स्क्वायर. फाइन, ग्रेट. अपॉन इसको सिंप्लीफाई कीजिए, a प्लस b इंटू a प्लस c. यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्लस दिस इंटू दिस इट्स a स्क्वायर, है ना, प्लस दिस इंटू दिस इज ac प्लस दिस इंटू दिस इज ab प्लस दिस इंटू दिस इज bc माइनस bc. ऐसे ही कुछ आ जाएगा. नाउ लुक एट दिस थिंग होल. इसको एक बार पूरे में देखिए. It shouldn't be that difficult to identify. यहाँ पे देखो भाई, we have something here. b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर हो रहा है. b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर किसके इक्वल है? a स्क्वायर के. तो मैं इन दोनों टर्म्स को क्लब कर लूंगा और लिख दूंगा a स्क्वायर. तो इट्स a स्क्वायर प्लस ac प्लस ab. ठीक है.
अपॉन ये टर्म देखिए, ये बी सी कैंसिल हो गया, तो ये हो क्या गया आपका ए स्क्वायर प्लस ए सी प्लस ए बी। अब देख रहे हैं ये क्वांटिटी क्या बन गई 1 tan इनवर्स 1, योर आंसर इज π/4 आ गया आपके पास। चलिए मूविंग ऑन, यहाँ से आगे मैं जा रहा हूँ। सो द नेक्स्ट प्रॉब्लम सेज दैट अगेन इंटीग्रल, सिंपल से इंटीग्रल की प्रॉब्लम है। इट सेज you have been given an integral and you have to evaluate what it would be। ये किसके इक्वल हो जाएगा, x³ minus 1 to the power 1/4 x 19/4। देखने से मुश्किल लग रहा है, पता नहीं क्या एक्सपोनेंट दे दिया। नो इट्स नॉट। यहाँ से x³ पुल करो, तो x³ जब पुल करोगे तो बाहर क्या आने वाला है आपके पास, x³ 3/4 नहीं। अच्छा तो फिर अगर न्यूमरेटर में x³ 3/4 आ गया, इट्स एज गुड एज कि यहाँ से मैं x³ 3/4 सब्ट्रैक्ट कर लूँ। नहीं, अगर मैं यहाँ से x³ 3/4 सब्ट्रैक्ट कर लूंगा, करो 3/4 सब्ट्रैक्ट, डोंट यू एग्री, ये 4 बन जाएगा सिंपली। फाइन, तो ये हो गया फिर x³ पुल किया आपने, राइट। तो मैं कह रहा हूँ ये होगा x³ 3/4, माय बैड, दिस इज नॉट x, ये क्या आ जाएगा आपके पास 1 minus 1 upon x³ to the power 1/4। ये x³ 19/4 ही रह गया dx। नाउ इट्स ऑब्वियस, नहीं ये क्या हो जाएगा आपके पास 1 minus 1 upon x³ 1/4, और ये क्या बन गया x³ 4। नाउ यू शुड बी डिलाइटेड, ये देखने के बाद यू शुड बी डिलाइटेड। व्हाई, बिकॉज यू रियलाइज दैट ये जो लिख रखा है इतना कुछ, वो एक्चुअली इन वन वे और अदर इसका डेरिवेटिव है। इसका डेरिवेटिव आप लेंगे x³ 4 समथिंग लाइक दैट डिनोमिनेटर में आएगा। तो अब यहाँ से आगे कर लीजिए, मैं 1 upon x को कुछ t ले लूँ, नहीं इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा आपके पास -3 विच इज 3 आ जाएगा फिर आपके पास, ठीक है। हाँ, और अपॉन ये क्या आ जाएगा आपके पास x³ 4 dx इज इक्वल टू dt। सब्स्टिट्यूट dx अपॉन x³ 4 को क्या सब्स्टिट्यूट कर लेंगे dt/3, ये एक्सप्रेशन क्या होगा t⁴ 1/4 एंड यू आर डन, हो जाएगी प्रॉब्लम। चलिए देन मूविंग ऑन, यहाँ से आगे हम जा रहे हैं। So the problem says that limit की problem है again, x tends to a from left, left से approach कर रहा है, mod of x³ upon a minus x upon a square brackets, उसका q है और इन्होंने दे रखा है that a is positive, a पॉजिटिव दे रखा है और इसकी वैल्यू पूछ रहे हैं। fairly simple, नहीं क्यों भाई, x अगर a से स्मॉलर है, अगर देखो x a से स्मॉलर, लुक एट दिस नंबर हियर, इस नंबर को देखो, ये नंबर a से छोटी है, इसकी वैल्यू मतलब a के बहुत ही क्लोज है ऑफ कोर्स, बट a से अभी भी कम है। सिंस पॉजिटिव है तो आई विल अस्यूम कि ये रेशियो एट एनी टाइम पॉजिटिव है, राइट। बट ये रेशियो क्या होने वाला है, लेस देन 1। क्यों, बिकॉज x कितना भी a के क्लोज हो अभी भी a से स्मॉलर है, नहीं, तो ये वैल्यू इट्स पॉजिटिव बट लेस देन 1, तो इसका ग्रेटेस्ट नियर क्या हो जाएगा 0। तो सिंपली प्रॉब्लम क्या बची आपके पास, सिंपली प्रॉब्लम बची लिमिट x टेंड्स टू a फ्रॉम लेफ्ट mod of x³ upon a, ये बची फिर। नाउ x टेंड्स टू a फ्रॉम लेफ्ट, ये वैल्यू क्या हो जाएगी a³, so this limit will be a square, नहीं। The problem would be more interesting अगर आप यहाँ पे भी greatest near लगा देते, नहीं। So food for thought क्या हो जाएगा अगर आप यहाँ पे भी greatest near लगा दे तो then check, it might be option number D जो इन्होंने दे रखा है, that 0 for a less than or equal to 1 and a square for a greater than 1, this will be true। How come? Evaluate कीजिए। So I'm going to rub this off, मैं इसको rub कर रहा हूँ। Now we move on to the next problem, हम next problem कर रहे हैं। Now the next problem says that, देखिए next problem क्या कहती है, that 43, in fact 44, my bad, oh it's almost like I have become repetitive, arguably। Now the area bounded by the curves this and its inverse is given by, ठीक है यार, plot कर लो इसको। first curve क्या है आपके पास, y is equal to x square minus 2x plus 2, नहीं, तो I'll ask you plot, आप समझ रही है पैराबोला आने वाला, it's nothing but x minus 1 का square plus 1, ऐसे कुछ है, which is nothing but y minus 1 equal to x minus 1 squared, it's a parabola। upward parabola है, vertex का है इसका 1,1 पे, ठीक है। तो मैंने कुछ ले लिया 1,1 और मैं ऐसा कुछ पैराबोला प्लॉट कर रहा हूँ, ठीक है, ऐसा कुछ आ गया, ये 1,1 है, फाइन। अब देखो आपको प्लॉट ये करना है कि ये और इसके इनवर्स जितना एरिया बाउंड करते हैं वो, तो देखिए इनवर्स आप अगर किसी फंक्शन का प्लॉट करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ये फंक्शन आप देखें तो बाइजेक्टिव है नहीं, तो टेक्निकली इसका इनवर्स ऐसे एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो मुझे अगर मुझे डिफाइन करना है तो मैं डिफाइन करूंगा रिलेशन का इनवर्स, और वहां पे ये कंडीशन नहीं होगी कि आपके रिलेशन को बाइजेक्टिव होना ही चाहिए, राइट। बट एनीवे, तो देखो क्या करोगे आप इस कर्व का मिरर इमेज लोगे, किस में मिरर इमेज लोगे, y इक्वल टू x में, तो उसके लिए मुझे ये नहीं निकालना चाहिए कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन y इक्वल टू x के साथ। लुक एट दिस पॉइंट है, इस पॉइंट को देखो, ये क्या है 1,1, ये पॉइंट क्या है 0,0, तो आपकी जो y इक्वल टू x लाइन होगी वो यहां से तो पास करेगी नहीं।
देखो मैं ये भी कह सकता हूँ कि ये ऐसे ही निकलेगी. क्यों ऐसे ही निकलेगी? बिकॉज यहाँ पे जो स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा वो 0 होगा, नहीं, और इस लाइन की स्लोप क्या है 1, तो ये कट करके ऊपर से ही निकलेगी. फाइन, ऑलराइट. अब ये पॉइंट निकालना, इनफैक्ट ये तो आ ही गया, ये पॉइंट निकालना, तो आप क्या करोगे? y इक्वल टू एक्स को सॉल्व करोगे एंड y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 को सॉल्व करोगे. सॉल्व कर लो भाई. व्हाट डू यू गेट? एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू x. सो आगे आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0. यहाँ से आगे आपके पास x इज इधर 1 और 2, मतलब ये पॉइंट 1, 1 है, तो यहाँ पे x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी? 2, 2. फाइन. अब देखो इसका जो आप इनवर्स प्लॉट करोगे तो वो इसका मिरर इमेज होगा, और जो मिरर इमेज होगा वो कुछ ऐसा ही एरिया होगा, नहीं, मतलब जो भी आप इसका मिरर इमेज ले रहे हो इस लाइन में, और वो कुछ ऐसी कर्व आएगी, राइट. अब ये एरिया आपको निकालना है, तो देखिए ये एरिया हम निकालने नहीं वाले, आप समझ रहे हैं, आप ये एरिया निकालने वाले हैं. बाय सिमेट्री आप बता देंगे कि दैट दिस एरिया जो है ये हाफ है ऑफ टोटल एरिया विच वी वांट टू वैल्यूएट. तो जो टोटल एरिया हो जाएगा इट्स एक्चुअली नथिंग बट ट्वाइस ऑफ दिस एरिया. इस एरिया का ट्वाइस हो जाएगा, नहीं, तो विच इज जो हो जाएगा आपके पास 2 टाइम्स, किसका 2 टाइम्स? इंटीग्रल, मैं लिख रहा हूँ कहाँ से कहाँ तक भाई? 1 to 2 किस कर्व माइनस किस कर्व, ऊपर क्या लाई कर रहे हैं यहाँ पे? y इक्वल टू एक्स कर लो, y इक्वल टू एक्स माइनस जो दूसरी कर्व है आपके पास, व्हाट्स दैट कर्व? एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2. इवैल्यूएट कर लीजिए इसको फ्रॉम 1 to 2, 1 से 2 में इसको इवैल्यूएट कर लीजिए एंड यू हैव योर आंसर, राइट. ऑलराइट, मूविंग अगेन, देन आगे जा रहे हैं ना. वी आर कमिंग टू अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम फ्रॉम 3D. 3D की एक स्पेशल सी प्रॉब्लम पे आ रहे हैं, नॉट स्पेशल इन दैट वे, मतलब ऐसा कुछ हो नहीं रहा है यहाँ पे, just that you had to be vigilant. आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना था कि क्या हो रहा है. It says that a line makes some angle theta with x-axis and z-axis, fine, and beta with y-axis. अब जानते हैं वो डायरेक्शन कोसाइंस के फंडे से अगर थीटा थीटा एंड बीटा बना रही है तो दिस विल बी ट्रू. ये ट्रू होगा ना, cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर बीटा will be equal to 1, नहीं, it's not sin स्क्वायर बीटा, my bad, it should be cos स्क्वायर बीटा. cos स्क्वायर बीटा will be 1, नहीं. चलो फाइन. अब इन्होंने कुछ दे रखा है भाई, क्या दे रखा है? sin स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 3 sin स्क्वायर थीटा. ठीक है, हम आ जाते हैं उस पे. तो यहाँ से आ गया जाएगा. वैसे अगर इसको मैं ट्रांसपोज कर दूं तो यू गेट समथिंग, नहीं, क्या आ जाएगा? देखिए 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, यहाँ से क्या आ गया? 1 माइनस cos स्क्वायर बीटा, इट्स sin स्क्वायर बीटा. एंड इन टर्न यहाँ पे sin स्क्वायर बीटा कुछ दे रखा है. क्या दे रखा है? 3 sin स्क्वायर थीटा बाय द प्रॉब्लम इटसेल्फ. तो आपके पास आ गया 2 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 sin स्क्वायर थीटा, और cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू पूछ रहे हैं. तो लेट्स ट्रांसफॉर्म दिस इन टर्म्स ऑफ cos स्क्वायर थीटा कर लीजिए. ये आ जाएगा तो 3 ये यही रह जाएगा, ये 3 cos स्क्वायर थीटा ऐसा कुछ ट्रांसपोज हो गया. 5 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3, तो cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो गई आपके पास? 3/5. वेट देखिए, अगर उन्होंने ये लिख रखा है कि दैट सच लाइन डजंट एग्जिस्ट, इट शुड रिंग बेल्स. आंसर निकाल लिया, एक बार चेक तो करो भाई कि क्यों लिखा है सच लाइन डजंट एग्जिस्ट. एक बार अगर मैं यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा पुट करूँ इस इक्वेशन में, तो ये इक्वेशन है क्या? व्हाट्स दिस इक्वेशन बाय एनी चांस? 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर बीटा. माइंड यू, cos स्क्वायर बीटा, जहाँ पे बीटा क्या है? बीटा इज द एंगल मेड बाय द लाइन विद द y एक्सिस, शुड बी 1, नहीं. अब अगर आप cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू पुट करेंगे 3/5, डोंट यू एग्री ये क्वांटिटी 6/5 बन जाएगी, व्हिच इज इन टर्न ग्रेटर देन 1, राइट. बट सिंस इज ग्रेटर देन 1, सो cos स्क्वायर बीटा विल बी नेगेटिव, व्हिच कांट बी ट्रू. ये ट्रू हो ही नहीं सकता, नहीं. सो व्हिच वुड मीन दैट such a line doesn't exist. There will be a value of theta, but such a line wouldn't exist, right? All right. So moving on, then हम यहाँ से आगे जा रहे हैं. Move on to problem number 46. 46 पे आ जाइए. 46 पे, right? So it says that a Rolle's theorem holds for the following function. Rolle's theorem holds for the following function and blah. This is equal to this. So fx is given to you as, देखिए आपके पास fx क्या दे रखा है? 2x cube plus bx square plus cx. किस इंटरवल के लिए रोल्स थ्योरम दे रखा है उन्होंने? -1 से 1 में. At the point x is equal to 1/2. ठीक है यार, रोल्स थ्योरम होल्ड करने की कंडीशन क्या होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल फंक्शन शुड बी कंटिन्यूअस इन दिस इंटरवल, है ना, पॉलिनॉमियल है, डिफरेंशिएबल कंटिन्यूअस होगा. डिफरेंशिएबल इन द ओपन इंटरवल -1 to 1, वो भी होगा, इट्स पॉलिनॉमियल, फाइन. फिर क्या है आपके पास? दैट f of a should be equal to f of b, which means that f of -1 किसके इक्वल होना चाहिए? f of 1, which would mean that इसका मतलब क्या हो जाएगा आपके पास? -2 plus b minus c किसके इक्वल हो जाएगा? 2
प्लस बी प्लस सी, है ना. सो व्हाट यू गेट, यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास, कुछ तो कैंसिल हो गया, लाइक बी कैंसिल हो गया, तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ सी. आपका सी की कुछ वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी, इनफैक्ट 2c की वैल्यू आ जाएगी -4, तो सी की वैल्यू आ जाएगी -2. नहीं, अब कहाँ पे होल्ड कर रहा है रोल्स थ्योरम, 1/2 पे. इट मींस दैट f dash 1/2 विल बी 0, राइट. ओके, सो f dash 1/2 इज 0. तो यहाँ से आपके पास वापस से किसकी वैल्यू आ जाएगी, b की वैल्यू. क्यों, बिकॉज f dash x आप देखो क्या हो जाएगा आपके पास, f dash x इज नथिंग बट 6x² प्लस 2bx प्लस c. ऑलराइट, सो वी विल टेक अ ब्रेक. हम यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं एंड विल मीट अगेन. सो व्हाटएवर इज लेफ्ट, जो बचा हुआ है वो हम डिस्कस करते हैं. ऑलराइट, फाइन. All right, so this is regarding this problem. ये हो गई फिर. It was a typical Jeemain's problem. नहीं, उसमें कुछ करना भी नहीं होता. I mean, all that you have to do is that आपको अगर fundamentals याद है Rolle's theorem के, then we are good. Problem हो जाती है फिर. Look at 47. 47 कह रहे हैं the number of points at which this function g of x is non-differentiable. अच्छा, g of x दे क्या रखा है? First of all, g of x is 1/1 plus 2 upon fx. अच्छा, और fx भी डिफाइन कर रखा है कुछ. क्या डिफाइन कर रखा है? fx is equal to 1/1 plus 1 upon x. नहीं, अच्छा, देखने में मुश्किल लग रहा है, पहले ये फिर ये, पता नहीं क्या करना है. अरे नहीं, ऐसा नहीं करना. अब इसको सिंपली देखो, ये फंक्शन देखो, नहीं, इस फंक्शन को देखो. ये कांस्टेंट, ये पॉलिनॉमियल, ये कांस्टेंट हमेशा डिफरेंशिएबल, पॉलिनॉमियल हमेशा डिफरेंशिएबल. डिफरेंशिएबल फंक्शन अपॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन एक ही जगह नॉन डिफरेंशिएबल हो सकता है जहां पे डिनोमिनेटर 0 हो जाए. और ये 0 कब हो जाएगी? x इक्वल टू 0 पे. तो fx भी x इक्वल टू 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, राइट. दूसरे देखिए, ये फंक्शन कांस्टेंट डिफरेंशिएबल, इसको आप रिड्यूस कर लेंगे पॉलिनॉमियल में, फाइन, ऊपर चला जाएगा, फिर आ जाएगा. तो ये अगर वापस से नॉन डिफरेंशिएबल हो रहा है तो ये सिर्फ वहीं पे नॉन डिफरेंशिएबल होगा जहां पे ये क्वांटिटी 0 हो जाए. और ये क्वांटिटी 0 कहां पे हो जाएगी? एट x इक्वल टू -1. तो दो पॉइंट्स तो fx के नॉन डिफरेंशिएबिलिटी के आगे 0 एंड -1, फाइन. अब gx के क्या हो जाएंगे? ये सारे तो रहेंगे जहां पे fx नॉन डिफरेंशिएबल है. एक पॉइंट और हो जाएगा ना जहां पे ये क्वांटिटी 0 हो जाए. नहीं, मतलब क्या 0 हो जाए? 1 प्लस 2/fx 0 हो जाए. नहीं, तो मतलब fx की वैल्यू क्या हो जाए आपके पास? 2/fx की वैल्यू क्या हो जाए आपके पास? मतलब fx की वैल्यू क्या हो जाए? -2. तो एक और पॉइंट आएगा जब fx विच इज व्हाट, fx है आपके पास 1/1 प्लस fx की वैल्यू क्या आ जाएगी? -2. सॉल्व कर लीजिए. एक और आपके पास पॉइंट आ जाएगा जहां पे फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है. एक 0, एक -1 और एक यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वो, these 3 points fx will be non differentiable, right? Moving on then, 48 में क्या कर रहे हैं? 48 में कर्व्स दे रखी है x इक्वल टू 0 एंड व्हाट्स दैट, x प्लस 2 mod of y इक्वल टू 1. ठीक है यार, मतलब इसमें कुछ करना भी है, दो ही लाइन ही तो प्लॉट करनी है. x इक्वल टू 0 क्या है आपके पास? x इक्वल टू 0, हाँ, y एक्सिस. ओके, ये लाइन प्लॉट करनी है, ठीक है. अब या तो मॉड ऑफ y का ट्रांसफॉर्मेशन यूज करो. लाइक मैं आपसे पूछूं कि अब पहले ये बता दो भाई कि ये लाइन कैसे प्लॉट करोगे? x प्लस 2y इक्वल टू 1. तो अब बताओगे ये एक लाइन है जिसका x पे इंटरसेप्ट है 1,0 विच इज फेयर, और y पे इंटरसेप्ट क्या है आपके पास? 0,1/2 विच इज फेयर. और ये लाइन कुछ ऐसी होगी, ऐसे जा रही होगी. अब बट आपको ये नहीं चाहिए ना, आपको ये चाहिए x प्लस 2 mod of y इक्वल टू 1. तो आप क्या करोगे? ये जो नेगेटिव पार्ट है पहले वो हटाओगे, फिर इस पॉजिटिव पार्ट का क्या लोगे? रिफ्लेक्शन लोगे. ऐसे ही तो आ जाएगा. अब देखिए, आपको इस कर्व और इस कर्व के बीच का एरिया निकालना है, मतलब ये एरिया निकालना है. डोंट गो बाय दिस डायग्राम, दीज टू ट्रायंगल्स आर इंडीड सिमेट्रिकल. वो देखने में मैंने नहीं बनाया है, बट सिमेट्रिकल है, राइट? क्योंकि आपने इसका रिफ्लेक्शन लिया यहाँ पे. इसका एरिया निकालना है, निकाल लो. इसका एरिया क्या हो जाएगा? इसका एरिया हो जाएगा हाफ इंटू दिस. ये जानते हो आप 1 है, ये जानते हो 1/2 है, तो ये टोटल क्या हो जाएगा? 1. तो ये क्या आ गया आपके पास? 1/2 इंटू 1 इंटू 1 which is 1/2 square units. नहीं, ग्रेट. मूविंग ऑन देन, यहां से आगे जा रहे हैं.
So next problem is 49. फिर आपके पास 49 tan of cos inverse x is equal to sin of cot inverse 1 by 2. ठीक है, तो इतना मुश्किल क्या है? आप cos inverse x को कुछ थीटा ले लो, नहीं कुछ cot inverse 1 by 2 को कुछ फाई ले लो. तो ये इक्वेशन क्या कह रही है? इक्वेशन ये कह रही है ना कि tan थीटा जो है वो किसके इक्वल है? tan थीटा किसके इक्वल है आपके पास? बेसिक एंगल थीटा, ये किसके इक्वल है? sin फाई के इक्वल. यही तो है प्रॉब्लम. ठीक है, अब देखो यार, अगर cot इनवर्स 1 by 2 इज फाई, तो cot फाई की वैल्यू क्या है? cot फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास? इज दैट 1 by 2? 1 by 2 ही है. नहीं, या तो आप ट्रायंगल वाला मेथड यूज कर लो या कुछ भी कर लो, जैसे आप निकालना चाहते हो निकाल लो. लाइक अगर मैं बोलूँ कि किसी ट्रायंगल में cot फाई इज 1 by 2, cot फाई होता क्या है? इट्स नथिंग बट बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ऐसा ही कुछ होता है. लाइक अगर ये एंगल फाई ले लूँ और इसके करस्पॉन्डिंग आपसे मैं cot फाई पूछूं, तो आप ये बताओगे ना कि दैट ये फिर क्या हो जाएगा? बेस, और ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर. यही तो होता है. तो इसके करस्पॉन्डिंग मुझे निकालना क्या एक्चुअली? sin फाई. तो अगर ये फाई है तो ये क्या आ जाएगा आपके √5. तो sin फाई की वैल्यू इस फाई के लिए क्या आ जाएगी? इज दैट 2 by √5? यही है फिर. नहीं, सिमिलरली यहाँ से देखो, यहाँ से आपके पास क्या है? cos थीटा की वैल्यू कुछ दे रखी है. क्या दे रखी है? x इज नथिंग बट x अपॉन 1. नहीं, तो अगर यहाँ से tan थीटा की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो ये अगर एंगल मैंने थीटा ले लिया तो ये क्या लिखा है? बेस विच इज x, और ये क्या दे रखा है? 1. तो ये हो क्या जाएगा? √1 माइनस x स्क्वायर. तो tan थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास? दिस अपॉन दिस, which is equal to 2 upon √5. नहीं, सॉल्व कर लीजिए. नाउ वेट, देयर इज अ कैवियट कि ये आप ध्यान में रखिए कि दैट वी अस्यूम दैट अगर जब आप ये ट्रायंगल वाला मेथड यूज कर रहे हैं तो आपने अस्यूम कर रखा है कि दैट दिस क्वांटिटी x विल बी इंडीड पॉजिटिव, एल्स ट्रायंगल वोंट बी डिफाइंड, व्हिच इज नॉट नेसेसरली ट्रू. तो आपको इसको जनरल मेथड से करना आना चाहिए. मतलब आई कुड हैव रिटन cos थीटा और मे बी अगर मुझे cos थीटा पता है तो आई नो व्हाट्स tan थीटा इन टर्म्स ऑफ cos थीटा. ये मुझे आनी चाहिए. That's another way and that's the more appropriate way. I hope आप समझ रहे हैं कि that this method has a problem कि this number x need be positive. ये positive ही होगा तभी आप triangle कोई feasible बता पाएंगे. राइट, चलिए anyway, moving on then, यहाँ से हम आगे जा रहे हैं. सॉल्व कर लीजिए इस इक्वेशन को. इसको सॉल्व कर लो, स्क्वायर कर लो, क्या आ जाएगा? देखो आपके पास 5 times 1 minus x square is equal to, इसका स्क्वायर कर लिया, it's 4x square. ऐसे ही कुछ आ जाएगा. what do you get? क्या आ जाएगा? 5 is equal to क्या आ जाएगा? 9x square. ठीक है, तो x स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? 5 by 9 आ गई. तो x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? प्लस माइनस √5 by 3. दो सोल्यूशंस आ रहे हैं, बट दूसरा सोल्यूशन ट्रू नहीं होगा. क्यों ट्रू नहीं होगा? बिकॉज देखिए, राइट हैंड साइड पॉजिटिव है. अगर x की वैल्यू आपने नेगेटिव ले ली, थिंक ऑफ इट, अगर x की वैल्यू नेगेटिव ले ली तो cos इनवर्स नेगेटिव क्या हो जाएगा वो एंगल? लाइक मैं आपसे पूछता हूँ कि cos इनवर्स 0 क्या होता है? इजंट दैट पाई बाय 2? नहीं, तो अगर ये नेगेटिव कर लिया तो ये एंगल क्या हो जाएगा? पाई बाय 2 से ग्रेटर एंड पाई से स्मॉलर, और तब tan उसका क्या हो जाएगा? नेगेटिव. तो नेगेटिव कांट बी इक्वल टू पॉजिटिव. दिस इज नॉट ट्रू. So there will be only one solution, x is equal to √5 by 3, and you should look out for such points. आपको ये देखना चाहिए कि जब भी आप ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो एक बार चेक कर लीजिए कि क्या सारे सॉल्यूशंस इक्वेशन को सैटिस्फाई कर रहे हैं. दिस इज वन ऑफ द एस्पेक्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग. चलिए मूविंग ऑन देन, यहाँ से आगे हम जा रहे हैं. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम व्हिच सीम्स टू बी फ्रॉम कैलकुलस एंड इट अपीयर्स एज इफ कि यहाँ पे बहुत कुछ दे रखा है, बट एक्चुअली बहुत कुछ है नहीं. पूछ नहीं रहे. क्यों? ये देखिए, पूछ रहे हैं आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0. तो अगर विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन है तो देयर इज नो वे आउट, विल हैव टू चेक ऑप्शंस. हमें ऑप्शन देखना ही पड़ेगा. मतलब हम नहीं बता सकते, राइट, शुरू से कि ये ही नहीं होगा, राइट. तो व्हिच मींस दैट विल हैव टू चेक ऑल दीज ऑप्शंस. अब पॉइंट ये है कि लुक एट दिस फंक्शन cos mod of x. अरे यार, mod of x होता क्या है? व्हाट्स mod of x? तो अब इसको ये बताओगे ना कि दिस विल बी इक्वल टू cos of x व्हेन x इज पॉजिटिव, x इज नॉन नेगेटिव. और फिर क्या बताओगे आप? cos of minus x when x is negative. ऐसे ही तो बताओगे. बट cos of minus x is as good as cos of x. नहीं, तो इसका मतलब cos of mod of x जो है ना, it's as good as cos of x. नहीं, ठीक है, ग्रेट. अब जो हम ऑप्शंस को रिफ्यूट करना शुरू करते हैं. सो फर्स्ट ऑप्शन देखिए, उन्होंने दे रखा है कि दैट दिस फंक्शन, अब मैं cos of mod of x को सिंपली x लिख रहा हूँ, is differentiable at x is equal to 0, which is not true. Why? Because x is equal to 0 पे ये डिफरेंशिएबल है, ये नॉन डिफरेंशिएबल है, और एक डिफरेंशिएबल और एक नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन का सम इज नॉन डिफरेंशिएबल. सिमिलरली जो सेकंड ऑप्शन दे रखा है इन्होंने, cos x, अब मैं mod of x को अगेन x लिख रहा हूँ, सिंपली माइनस ये क्या लिख रखा है इन्होंने? mod of x. दिस विल बी नॉन डिफरेंशिएबल एट 0 फॉर द सेम रीजन. क्यों? ये डिफरेंशिएबल, ये नॉन डिफरेंशिएबल.
एक डिफरेंशिएबल और नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन का सम इज गोइंग टू बी नॉन डिफरेंशिएबल, राइट? द थर्ड वन इज, जो तीसरा है आपके पास, वो है आपके पास साइन मॉड ऑफ एक्स। अब देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम है, क्यों? यहाँ पे आपको यू कांट से, आप नहीं कह पाएंगे ना कि दैट साइन मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। इट्स नॉट ट्रू। क्यों? आप साइन मॉड ऑफ एक्स को क्या लिखोगे? साइन एक्स कब है साइन एक्स? व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फिर क्या लिखोगे? साइन ऑफ माइनस एक्स व्हेन एक्स इज नेगेटिव। आप जानते हैं कि दैट साइन ऑफ माइनस एक्स इज नॉट साइन एक्स, इट्स माइनस साइन एक्स। You are not dealing with two functions. So आप दो functions से deal कर रहे हैं, नहीं? तो now the problem becomes something that you have to check on your own. मतलब so now we are dealing with two problems. अब मैं दो problems को categorize कर रहा हूँ। देखिए मैं लिख रहा हूँ sin x plus sin mod x plus mod x को मैं define कर रहा हूँ। That there is nothing but देखो sin x plus x when x is positive, 0 when x is 0, and minus sin x minus x when x is negative. ऐसा ही है। एक बार डिफरेंशिएट कर लीजिए इसको, डिफरेंशिएटेड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्यों? 0 पे कंटिन्यूअस है, कर सकते हैं हम ऐसा। इन जनरल हम नहीं कर सकते, अगर 0 पे कंटिन्यूअस नहीं होता तो हम डायरेक्टली इनका डेरिवेटिव नहीं ले सकते थे, राइट? दिस इज इंपॉर्टेंट। तो एक बार डेरिवेटिव ले लो, ये क्या आ जाएगा आपके पास? cos x और प्लस 1 व्हेन x इज, अब लिमिट x टेंड्स टू 0 जब आप निकालेंगे, इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? cos x प्लस 1, x टेंड्स टू 0 करेंगे तो ये लिमिट क्या आ जाएगी? 2। सिमिलरली इसका डेरिवेटिव लेंगे, ये क्या आ जाएगा? माइनस cos x माइनस 1, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस 2। They're not equal, which means that this function is non-differentiable. So which means that we are left with only one. It must be differentiable, but हम check कर लेते हैं। हम check कर लेते हैं कि that it's indeed differentiable. तो जो आपके पास fourth है, वो है कि आपके पास sin mod of x minus mod of x. It's ये आप क्या लिखोगे फिर? Sin x minus x when x is positive, 0 when x is 0, minus sin x plus x when x is negative. नहीं? अब अगेन देखिए 0 पे कंटिन्यूअस है, सो मैं सिंपली डिफरेंशिएट कर सकता हूँ, राइट? डिफरेंशिएट कर दो, ये क्या आ जाएगा आपके पास? cos x minus 1 as x tends to 0 from right, cos x minus 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0, बिकॉज लिमिट x tends to 0, cos x 1 होने वाला है, ये 0 होगी। सिमिलरली ये देखिए ये क्या आ जाएगा? आप डिफरेंशिएट कीजिए, माइनस cos x plus 1 as x tends to 0 from left, ये वैल्यू कहाँ जाएगी? माइनस cos x minus 1, ये कहाँ जा रहा है? 1, 0 आ गया। फंक्शन इंडीड 0 पे डिफरेंशिएबल है, राइट? Alright, so moving on then, यहाँ से हम आगे जा रहे थे। It says that matrix A is non-invertible for question number 51. Now, non-invertible. तो यहाँ पे कुछ करना भी है क्या? I'd like to believe it's fairly simple. Determinant check करना बस। 2, 1, 3, K, 0, 1. ठीक है यार, मैं इसको expand कर रहा हूँ along first row. First row के along expand कर दो, देखो क्या आ जाएगा? 1 and this is simply 1. ठीक है, 0 तो 0 ही हो गया। फिर क्या बचा? माइनस के, और ये क्या आ गया? माइनस के, दिस इज इट इनटू माइनस के। तो इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ गई? 1 प्लस के स्क्वायर। यू रियलाइज दैट एज लॉन्ग एज के इज अ रियल नंबर, के स्क्वायर विल बी नॉन नेगेटिव, सो दिस एक्सप्रेशन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो ये 0 कभी होगा ही नहीं। फाइन, इसका मतलब ये मैट्रिक्स हमेशा जो आपके गिवन प्रॉब्लम में मैट्रिक्स दे रखी है, इट्स ऑलवेज इन्वर्टिबल, हेंस फॉर नो रियल के दिस विल बी नॉन इन्वर्टिबल। आई होप यू आर क्लियर। ऑलराइट, चलिए फाइन। सो मूविंग ऑन देन, हम आगे जा रहे हैं यहाँ से। Look up to problem number 52. Problem number 52 पे देखिए, it says that the variable plane, this, ये जो variable plane है किस लाइन से पास करे, किस फिक्स लाइन से पास करे? तो पहले तो हम पूछते हैं कि वेरिएबल क्यों है प्लेन। अब दैट्स बिकॉज लैम्डा वेरी करेगा, नहीं? अच्छा, लैम्डा वेरी करेगा तो क्या हम इसको क्वालिफाई कर सकते हैं? सो कैन दिस बी रिटन एज, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? देखिए मैं लैम्डा वाली टर्म्स को ना एक साथ क्लब कर रहा हूँ, तो मैं लैम्डा को क्लब कर रहा हूँ। ये क्या आ गया मेरे पास? 2x, और ये क्या आ गया? देखिए मेरे पास y, ठीक है। और बची हुई टर्म्स को एक साथ क्लब कर रहा हूँ, x ये आएगा आपके पास, और ये क्या आएगा आपके पास? 3y प्लस z माइनस 4 इक्वल टू 0। और डू यू रियलाइज दैट ये जो लाइन पास कर रही है वो एक्चुअली किन दो प्लेन्स के पॉइंट लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रही है? दिस इक्वल टू 0 एंड दिस इक्वल टू 0, नहीं? ये देख रहे हो प्लेन की इक्वेशन है। किस प्लेन की इक्वेशन है? इन दोनों के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाली। मतलब आप जो लाइन की बात कर रहे हैं वो कौन सी लाइन है? वो इन दोनों प्लेन्स के की लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है। 2x माइनस y इक्वल टू 0 एंड x प्लस 3y प्लस z माइनस 4 इक्वल टू 0, यही है फिर। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई मुझे निकाल के बता दो कि कौन सी लाइन है जो दोनों प्लेन्स में लाई कर रही है, तो ठीक है आप जानते हैं, मतलब एक वे तो ये होगा ना कि भाई देखो अगर आपके पास कोई लाइन है जो दो प्लेन में लाई कर रही है, दो प्लेन्स में लाई कर रही है, तो ये लाइन जो होगी वो इस नॉर्मल के भी परपेंडिकुलर और ये लाइन इस नॉर्मल के भी परपेंडिकुलर। तो ये लाइन दिस क्रॉस दिस के लॉन्ग लाई कर रही होगी। तो वो जो लाइन है किसके लॉन्ग लाई कर रही होगी? मैं लिख रहा हूँ आई जे के। मैं उस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर है वो वेक्टर है आपके पास क्या? 2 -1 0,
और जो इसके परपेंडिकुलर वेक्टर है वो विच इज 1 3 1, इन दोनों के परपेंडिकुलर आपकी लाइन होगी अगर वो आपके प्लेन में लाई कर रही है, राइट। तो यहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे अगर, तो आपके पास लाइन का वेक्टर आ जाएगा। तो देखिए ये आई के साथ क्या आएगा आपके पास, मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, दिस इज आई, आई के साथ क्या आ जाएगा, इज इट -1, -1 आ गया। जे माइनस जे के साथ क्या आ जाएगा आपके पास, देखिए माइनस जे के साथ क्या आ गया, दिस इंटू दिस विच इज 2, और ये तो 0 ही हो गया। अब प्लस के के साथ क्या आ जाएगा आपके पास, दिस 3 to 6 -1 +1 कर देता हूँ, विच इज ये क्या आ जाएगा, देखिए आपके पास अगर मैं आपसे पूछूं कि लाइन के डायरेक्शन रेशियोज क्या है, इज इट फेयर टू से कि लाइन के डायरेक्शन रेशियोज -1 -2 7 है। तो आप एक बार चेक कीजिए कि आपको आपकी किस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज -1 -2 7 है, किसी के नहीं है। फाइन, सो द आंसर इज नन ऑफ दीज। अगर आपको एक पॉइंट निकालना पड़ता है इस प्लेन पे, तो उस लाइन पे तो आप क्या करते, आर्बिट्रली कोई एक 0 पुट कर लेते, नहीं। अब देखो जैसे z को 0 में कर दूं, ठीक है, तो अगर आप या फिर मतलब किसी को 0 कर लीजिए, लाइक मैं x को 0 कर लूँ या y को 0 कर लूँ। अगर मैं y को 0 कर लूँ तो देखो क्या हो जाएगा, x भी 0 आ जाएगा, तो x भी 0 y भी 0, z की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, मतलब ये दोनों प्लेन्स 0 0 4 से तो पास कर ही रही है। तो अगर ऑप्शन 3 में जो आपकी लाइन है वो 0 0 4 से पास कर रही है, बट इन्होंने डायरेक्शन रेशियोज ठीक नहीं दे रखे, अगर ये दे रखा होता तब आंसर आपका 3 हो जाता, बट अभी नन ऑफ दीज है, राइट। चलिए ऑलराइट, मूविंग ऑन देन, द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज ऑप्टिमाइजेशन। 53 पूछ रहे हो आपसे, नहीं। यूनिट वेक्टर है a माइनस बी का मॉड का स्क्वायर प्लस b माइनस सी के मॉड का स्क्वायर प्लस c माइनस a के मॉड का स्क्वायर डज नॉट एक्सीड, इसकी वैल्यू क्या नहीं एक्सीड करेगी। ठीक है यार, आप जानते हो ना कि इसको क्या लिखोगे आप, मतलब मैं एक वेक्टर को बस ये करके बता रहा हूँ, इट्स एज गुड एज दिस, ये बिल्कुल ऐसा लिखा है, नहीं, विच इज जो किसके इक्वल हो जाएगा आपके पास, और एबीसी यूनिट वेक्टर से तो ये हो गया जाएगा आपके पास मॉड ऑफ ए स्क्वायर मॉड ऑफ बी स्क्वायर, नहीं, -2a डॉट बी, ये तो हो जाएगा, विच इज व्हाट, ये हो गया जाएगा 2 - 2a डॉट बी। सिमिलरली मॉड ऑफ b माइनस c के मॉड का स्क्वायर में लिख दूं, इट्स 2 - 2b डॉट c। सिमिलरली मॉड ऑफ c माइनस c का स्क्वायर इज 2 - 2c डॉट a। फाइन, चलो फाइन, ऐड कर दीजिए सभी को, यही तो पूछा जा रहा है, तो ये वैल्यू हो गया जाएगी आपके पास 2 + 2 + 2 6 - 2a डॉट b b डॉट c प्लस c डॉट a। अब इसकी वो क्या पूछ रहे हैं आपसे, मिनिमम वैल्यू, नॉट मिनिमम वैल्यू, डज नॉट एक्सीड, तो मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहे हैं इनफैक्ट, राइट। चलिए अब लुक एट दिस एक्सप्रेशन, अगर ये किसी वेक्टर के मॉड का स्क्वायर है तो ये नॉन नेगेटिव तो होगा ही यार एटलीस्ट, नहीं। अब इसको वापस से ऐसे एक्सपैंड कर दो, इसको कैसे एक्सपैंड करोगे, a प्लस बी प्लस सी डॉट a प्लस बी प्लस सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, नहीं। अब देखो जैसे मॉड ऑफ ए स्क्वायर तो आएगा विच इज 1, मॉड ऑफ बी स्क्वायर भी आएगा विच इज 1, मॉड ऑफ सी स्क्वायर भी आएगा विच इज 1, दैट्स 3। अब एक बार देखो a डॉट बी कितनी बार आएगा, a डॉट बी b डॉट a, इज दैट ट्वाइस, ट्वाइस a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट a, ऐसा कुछ आ जाएगा फिर, नहीं, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसका मतलब कुछ आ गया, यहाँ से क्या आ गया, दैट 2a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट a इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3, यही है फिर। तो इसकी ये जो क्वांटिटी है ये ग्रेटर देन इक्वल है किससे, -3 से, मतलब इसकी लीस्ट वैल्यू -3, राइट। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी 6 - -3 विच इज 9। फाइन, मूविंग ऑन देन, अब हम आगे जा रहे हैं 54 डज इट इवन रिक्वायर मूविंग अ पेन, क्या जरूरत भी है इसमें कुछ करने की। लुक एट द प्रॉब्लम 54, एक बार 54 देखिए, इट सेज दैट क्या दे रखा है उन्होंने, दैट क्या दे रखा है उन्होंने, दैट ABC आर यूनिट कोप्लेनर वेक्टर्स, एक तो यूनिट वेक्टर्स उस पे से कोप्लेनर, नहीं, और इसकी वैल्यू पूछ रखी है, देखो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू पूछ रखी है। द आइडिया हियर इज, देखिए आइडिया ये है कि दैट ABC फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिट वेक्टर्स है, उस पे भी कोप्लेनर है। अब आस्क योरसेल्फ कि ये डोंट यू एग्री, ये जो 3 वेक्टर्स लिखे हैं ये ABC के लीनियर कॉम्बिनेशन से रिजल्टेंट है, तो अगर ABC एक ही प्लेन में लाई कर रहा है तो उनका लीनियर कॉम्बिनेशन भी एक ही प्लेन में लाई करेगा, नहीं। तो ये वेक्टर सेम प्लेन के है, बिकॉज ABC कोप्लेनर वेक्टर्स है, उनका लीनियर कॉम्बिनेशन भी उसी प्लेन में होगा, तो ठीक है, ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू 0 आ जाएगी, वी आर गुड। इसमें ट्रिपल प्रोडक्ट निकालने की जरूरत भी नहीं है, इनफैक्ट आप कुछ भी कोएफिशिएंट कर दीजिए यहाँ पे, इट डजंट मैटर, दिस ट्रिपल प्रोडक्ट हैज टू बी 0 एज लॉन्ग एज ABC जो वेक्टर्स दे रखे हैं उन्होंने वो क्या दे रखे हैं आपको, अ कोप्लेनर, राइट।
चलिए मूविंग ऑन देन, यहाँ से आगे जा रहे हैं एंड नाउ वी आर मूविंग ऑन टू प्रॉब्लम नंबर 55 पे आ जाते हैं. What does that say? क्या कह रही है 55? It says that in a certain study 40% of people have brown hair. Okay, certainly not Delhi or not any town of India for that matter. Brown hairs, come on. So देखिए brown hair की probability क्या है? 40%. वो भी 40% नहीं. We are definitely not talking about Delhi. All right, so and then brown hair की probability है 0.4. फिर brown eyes. It's given to you as क्या दे रखा है 25%, which is 1/4, which is 0.25. So we are talking about Wonderland, and 50% have brown eyes as well as brown hair. मतलब क्या brown eyes भी है, brown hair भी है, और वो कितने हैं आपके पास 50%, 15% in fact. ठीक है. अब वो पूछ रहे कि यार if the person is selected at random पकड़ लिया किसी को, fine, and they have brown hair, उनके पास brown hair है, the probability that he also has brown eyes, मतलब probability क्या हो जाएगी कि उसकी brown eyes भी हैं, given that the person selected has brown hair. यही है ना पूछा हुआ? नहीं, you know that the given person selected has brown hair, जानते हैं आप, given this event. फिर पूछा जा रहा है probability that the person has brown eyes. Now this is nothing but आप जानते हैं this is nothing but P of E intersection H upon P of H by definition. P intersection H आपको दे रखा है, क्या दे रखा है 0.15. PH दे रखा है, PH क्या दे रखा है 0.4. Evaluate, you'll get the answer. Evaluate कर लीजिए, आंसर आ जाएगा, छोड़ दो उसको. All right, 5 horses are in a race. Now this is going to be a marathon. ये एक marathon होने वाली है. Pun intended, because this problem is long and rigorous, and in fact one of the better problems हैं यहाँ की इस टेस्ट की. So it says 56. देखिए 5 horses हैं आपके पास रेस में. Mr. selects 2 of the horses at random and bets on them. उन पे bet कर दिया Mr. A ने. If all the possible outcomes are equally likely, including the possibilities of tie, and which makes the problem interesting. Think for yourself. Don't you agree अगर आपके horses race कर रहे हैं तो there is a possibility of tie. और यहाँ पे तो ये भी लिख दिया कि भाई ties are equally likely, मतलब जैसे सारे cases होंगे वैसे tie भी होगा और सबकी probability same है, right? So then now the probability that Mr. A will win the bet is, फिर Mr. A bet करे और वो जीत जाए, उसकी probability क्या होगी? That's what they're asking. Now, had there been no ties, अगर ties नहीं होते तो आप जान रहे हैं, each horse will end up in a different position, and the total number of ways, your sample space would be nothing but factorial 5. Simply factorial 5 हो जाता है and we're done. Problem हो जाती. But this is not going to be the case now. अब ये होने नहीं वाला. आप समझ रहे हैं कि tie is a real possibility here as implied by the nature of the problem, right? Now, अब मैं कहता हूँ कि यार हम cases बना लेते हैं कि that it's going to be a marathon, as I said. Not only the horses are running the marathon, we have also a significant responsibility on our shoulders. So अब मुझे बता दीजिए कि यार देखो 5 horses हैं, रेस कर रहे हैं, fine. तो मैं cases बनाता हूँ. एक केस में ये तब बताता हूँ कि जब सारे हॉर्स डिफरेंट पोजीशन पे है, तो जब मैं 1-1 लिखूं ना, इस 1 का मतलब है ये हॉर्स अलग आ रहा है, ये हॉर्स अलग आ रहा है. तो ये अगर सारे हॉर्स अलग अलग पोजीशंस पे आएंगे, मतलब अलग अलग उनकी रैंकिंग होगी, तो दिस इज गोइंग टू बी सिंपल. ऐसे तो सिंपलीफाई फैक्टोरियल अरेंजमेंट्स हो जाएंगे, नहीं सभी अलग अलग पोजीशंस पे, राइट? बट आप जानते हैं कि ऐसा सिर्फ नहीं होगा, और भी बड़े सारे केसेस होंगे. चलिए, और कौन से केसेस हो सकते हैं? लाइक अब मैं कहता हूँ कि लाइक क्या आप ऐसा केस पॉसिबल है कि जब आपके पास 4 हॉर्सेस एक साथ आ जाएं, या मैं इसको कंबाइन करता हूँ और 2 हॉर्सेस एक साथ आ जाएं, 2 हॉर्सेस एक साथ, एक अलग एक अलग एक अलग, ठीक है, और इनके अपने परमिटेशंस, मतलब ये फर्स्ट कर रहा है, ये फर्स्ट कर रहा है, ये फर्स्ट कर रहा है, कौन सा फर्स्ट कर रहा है, राइट? तो पहले तो आपको ये करना होगा ना कि यार 2 हॉर्सेस यहाँ पे चूज करने होंगे. तो देखिए मैं चूज कर रहा हूँ पहले उन 2 हॉर्सेस को एक साथ जिनको लाना है, उनको भी आप चूज कर सकते हैं 5 फैक्टोरियल, 0.2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल वेज में, ठीक है. अब आपने 2 हॉर्सेस का एक ग्रुप बना दिया, नहीं? अब आप क्या करने वाले हैं, इन 4 ग्रुप्स को आप आपस में अरेंज करेंगे रैंकिंग्स के लिए. फाइन, कर दीजिए. कितने वेज में आप कर लेंगे? 4 फैक्टोरियल, राइट? और भी कोई वे है? अब मैं ऐसा लिखता हूँ कि 3 में लिखता हूँ. सो लाइक इज इट पॉसिबल, क्या ये पॉसिबल है? लाइक 3-1-1. क्या किया आपने? 5 में से 3 के बीच में टाई करा दिया, 2 अलग अलग पोजीशंस पे, और
इनकी पोजीशन आपस में अलग अलग है। तो पहले तो ये करो ना, ये कितने वेज में आप करोगे, 5 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, और इनको आपस में अरेंज कर लो, वो कितने वेज में कर लोगे, 3 फैक्टोरियल, राइट। और कौन से वेज हो जाएंगे, लाइक 2 to 1, मतलब किसी दो में टाई और एक कोई कहीं पे भी है। अब इनके भी आपस में परम्यूटेशन वो हम बाद में कंसीडर करेंगे, बट ये आप कर क्या रहे हैं, 5 फैक्टोरियल में कर रहा हूँ, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल। ये 2 फैक्टोरियल क्यों किया, बिकॉज ग्रुप्स आर आइडेंटिकल, तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा इस 2 फैक्टोरियल से। और वी क्लियर अबाउट दिस, इक्वल डिवीजन है, इक्वल नंबर ऑफ थिंग्स जा रहे हैं दो आइडेंटिकल ग्रुप्स में, आपको 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा, कम्स फ्रॉम डिवीजन ऑफ इनटू ग्रुप्स, राइट। चलिए मूविंग ऑन देन, 5 में आपने 3 में डिवाइड कर लिया ना, विल कम टू, क्या आप 5 को 2 में डिवाइड कर सकते हैं, ऑफ कोर्स। कैसे कर सकते हैं 5 को आप 2 में डिवाइड, लाइक आप कर लीजिए 4 कर लीजिए और +1 कर लीजिए, सो 4 + 1 कर लीजिए, ये कितने वेज में हो जाएगा आपके पास, 5 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल ऑफ कोर्स इंटू 2 फैक्टोरियल, यही होगा फिर, नहीं। ऑलराइट, और क्या हो सकता है, 5 को 2 में लिखना है आपको, तो 3 + 2 ये भी पॉसिबल है, which is 5 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ये 2 फैक्टोरियल क्यों, इन दोनों ग्रुप्स को अरेंज करने का। वन लास्ट थिंग, 5 को 5 कर लीजिए, ये एक ही वे होगा, सभी के बीच में टाई, ये है 3 के बीच में टाई, 2 के बीच में टाई, उनके बीच का अरेंजमेंट, फाइन। इन सभी को आप ऐड कर लीजिए, तो द टोटल नंबर ऑफ केसेस दैट यू विल गेट, द टोटल नंबर ऑफ केसेस दैट यू विल गेट, जितने क्योंकि केसेस आएंगे, दे विल बी 541, उनका नंबर 541 आएगा, राइट। नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग in a way that it's indeed a problem which you have to really slog out. इतनी आसानी से प्रॉब्लम नहीं हो रही है। Now, अगर आप देखेंगे ना, तो आपने क्या किया पता है, मैंने कुछ भी नहीं किया, 5 के पार्टीशंस किए हैं। देखो 5 का पार्टीशन है ये 5 अलग अलग इंटीजर्स में, 5 का पार्टीशन है ये 4 अलग अलग इंटीजर्स में, 5 के पार्टीशन है ये 3 अलग अलग इंटीजर्स में, और 5 का पार्टीशन 3 अलग अलग इंटीजर्स में। आई मीन 3 अलग अलग, आई डोंट मीन कि वो इंटीजर्स डिस्टिंक्ट है, नो, आई मीन 3 इंटीजर्स में और 3 इंटीजर्स में, ये 2 ही पार्टीशन हो सकते हैं। 5 का देखिए पार्टीशन है ये 2 इंटीजर्स में, 5 का पार्टीशन है 1 में, वो वही होगा। दिस इज योर सैंपल स्पेस, ये सैंपल स्पेस है। लेट्स कैलकुलेट द फेवरेबल इवेंट्स, फिर हम फेवरेबल इवेंट्स कैलकुलेट करते हैं। दिस इज गोइंग टू बी इवन फर्दर एंड आर्डुअस टास्क, सो स्टे विथ मी, डोंट लूज साइड ऑफ क्या हम करने वाले हैं। तो अब मैं ये कहने वाला हूं कि यार से आपके पास 5 हॉर्सेस है नहीं, H1, H2, H3, H4, H5 से आपने बेट किया है H1, H2 पे, या मिस्टर ए ने बेट किया है H1, H2, द नेम इज क्वाइट इंटरेस्टिंग, मिस्टर ए। अब उन्होंने H1, H2 पे बेट कर लिया ना, व्हाट नाउ, अब क्या होने वाला है। द आइडिया हियर इज, देखिए आइडिया यहाँ पे ये है कि अगर मैंने H1, H2 पे बेट किया, तो आस्क योरसेल्फ कि ऐसे कितने केसेस होंगे, जब मुझे काउंट करने पड़ेंगे, ऐसे कितने केसेस होंगे जिसमें H1 फर्स्ट किया हो, ऐसे कितने केसेस होंगे जिसमें H2 फर्स्ट किया हो, फिर ऐसे कितने केसेस होंगे जिसमें H1, H2 दोनों फर्स्ट कर रहे हो, नहीं। तो हम सबको अलग अलग काउंट करेंगे। लाइक जब H1 फर्स्ट कर रहा होगा, तो हम वो सारे केसेस कभी काउंट नहीं करेंगे जिनमें H2 फर्स्ट हो रहा होगा। अभी क्लियर अबाउट दिस, जब हम H2 के लिए काउंट करेंगे, तो हम वो केसेस कभी काउंट नहीं करेंगे जिसमें H1 फर्स्ट हो रहा होगा। तो फर्स्ट वो केसेस काउंट कीजिए जिसमें सिर्फ और सिर्फ H1 टॉप पे था, बिल्कुल टॉप पे, विद नो वन विद दैट हॉर्स, उसके साथ और कोई नहीं था, सिर्फ H1 था, फाइन। तो ये बचेंगे कितने आपके पास, 4 हॉर्सेस। तो डोंट यू एग्री, उनको भी बड़े सारे वेज में वो किया जा सकता है। अब फिर क्या करोगे, 4 का पार्टीशन करोगे, नहीं। तो 4 का पार्टीशन कैसे हो सकता है, मतलब जो बचे हुए 4 हॉर्सेस हैं वो आपस में या तो फैक्टोरियल 4 वेज में कहीं भी आ जाए, यू डोंट केयर, दैट कुड बी वन वे, और फिर भी H1 टॉप पे आ जाए, या फिर वो बचे 4 हॉर्सेस के साथ आप क्या कर सकते हो, ये हो जाए, ये हो जाए और ये हो जाए, नहीं। तो ये कितने वेज में हो जाएगा आपके पास, देखिए 4 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, और आपने इनको अरेंज कर दिया आपस में, कितने वेज में अरेंज कर लिया, 3 फैक्टोरियल से, ठीक है। तो 3 में डिवाइड कर लिया, 4 को 2 में डिवाइड करते हैं, 2 में कितने वेज में डिवाइड होगा 4, एक तो 2 2 में डिवाइड होगा, विच इज 4 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, और 2 वेज में डिवाइड कितने वेज में हो जाएगा, 3 + 1, 3 + 1 कितने वेज में हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल विच इज इनकंसिक्वेंशियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ठीक है। और 4 वेज में कितने वेज, अब 2 हो गया आपके पास, अब 4 पे आ जाइए, वो एक ही वे होगा, सभी टाई हो जाए। ये एक केस है, जस्ट एक केस है जब H1 टॉप पे था और बचे हुए 4 हॉर्सेस कहीं भी कहीं आ रहे थे, और H1 सिर्फ अकेला टॉप पे था और उसके साथ कोई भी नहीं था, राइट। अब इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं। क्यों 2 से मल्टीप्लाई करने वाले, बिकॉज इतने ही सारे केसेस होंगे जिसमें H2 भी टॉप पे होगा, फाइन। तो वी आर नॉट गोइंग टू कैलकुलेट इट अगेन, एक्सक्यूज मी, H1 टॉप पे था, अब H2 टॉप पे आ गए, ऐसे ही इतने सारे केसेस बनेंगे, राइट।
एक केस ही हो गया। दूसरा केस क्या होगा आपके पास? और दूसरा केस तब होगा जब देखिए H1 टॉप पे था, बट H1 अकेला टॉप पे नहीं था, किसी और के साथ था। Who was not H2? H2 नहीं था वो, किसी के साथ H1 टॉप पे था, बट वो जो हॉर्स है वो H2 नहीं था। तो मैं क्या करता हूँ, जो टॉप पे आ सकता है अब यहाँ पे H1 के साथ, वो भी इनमें से तीन में से कोई एक सेलेक्ट करके आप टॉप पे ला दोगे नहीं। तो यहाँ पे H1 के साथ जब अब टॉप पे आया वो क्या है, 3 चूज 1, इनमें से कोई एक सेलेक्ट कर दिया, यहाँ पे टॉप पे डाल दिया। अब बचे कितने हॉर्सेस आपके पास? 3। उनको आप कितने वेज में अरेंज कर लो, तो 3 को कितने वेज में अरेंज कर लोगे? या तो ऐसे करोगे 1 + 1 + 1, मतलब वो जो बचे 3 हॉर्सेस है वो कहीं कहीं अलग अलग पोजीशंस पे आए जो इतने वेज में होगा, या फिर 2 + 1। पहले तो आप इसको ग्रुपिंग्स करोगे, इतने वेज में इनको ग्रुप बनाओगे, और फिर इन दोनों ग्रुप्स को अरेंज करोगे 2 फैक्टोरियल वेज में, या फिर क्या हो जाएगा, वो तीनों सब कुछ साथ साथ आ जाए, वो एक ही वे होगा नहीं। अब देखिए मैं वापस से इसको मल्टीप्लाई करूंगा, किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 2 से। क्यों? इतने ही ऐसे केसेस हो जाएंगे जब H2 होगा यहाँ पे और H2 किसी और के साथ टॉप करेगा हु इज नॉट H1। फाइन, चलिए थर्ड केस पे हम आ जाते हैं, जब H1 वापस से टॉप पे है बट उसके साथ 2 हॉर्सेस हैं टॉप पे अदर देन H2। तो यहां से मैं क्या करूंगा? 2 सेलेक्ट करूंगा, फिर कर लो 2 सेलेक्ट टॉप करने के लिए। और कितने वेज में आप इसको कर लेंगे? 2 जब आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया तो एक यहाँ बचेगा और एक H2 बचेगा, तो 2 ही लोग यहाँ पे बचेंगे फिर नहीं। उनको आप कितने वेज में करोगे? या तो वो दोनों अलग अलग पोजीशंस पे आएंगे या दोनों साथ साथ आ जाएंगे, वो एक वे होगा। फिर वापस से आप सारे केसेस को जैसे हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं करेंगे। क्यों करेंगे? बिकॉज सेम केस H2 के साथ रिपीट होगा नहीं। चल फिर एक केस होगा, देखिए जब H1 टॉप पे है और H1 टॉप पे है 3 हॉर्सेस के साथ एक्सेप्ट फॉर H2, तो आप क्या करोगे? ये तीनों ले आओगे फिर, और फिर क्या करोगे? H2 फिर यहीं आएगा कहीं पे नहीं। और ऐसे जो जितने भी वेज है, मतलब एक ही तो वे है यार, और उसको आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे। क्यों 2 से मल्टीप्लाई करोगे? बिकॉज एक और ऐसा केस होने वाला है जब H2 के साथ ऐसा ही होगा। फाइन, अब देखिए H1 के सारे केसेस हमने एग्जॉस्टिव डिस्कस कर लिए कि जितने केसेस में H1 टॉप पे होगा और H2 टॉप पे होगा, विदाउट H1 H2 टॉप पे होंगे। अब हम उन केसेस पे आ जाते हैं कि जब H1 H2 इंडीड टॉप पे होंगे और सिर्फ H1 H2 अभी टॉप पे, राइट। तो H1 H2 जब टॉप पे होंगे तो अब क्या करोगे? सिर्फ और सिर्फ H1 H2, इनके साथ और कोई नहीं है। तो बचे हुए हॉर्सेस को आप कितने वेज में कोई पोजीशन असाइन करोगे? 3 हॉर्सेस बचे, तो या तो वो सारे अलग अलग पोजीशंस पे हैं 3 फैक्टोरियल वेज में नहीं, या फिर 2 एक साथ आ जाए, कहीं आ जाए, तो वो कितने वेज में होगा? 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल वेज इंटू 1 फैक्टोरियल वेज, और इनको आप अरेंज कर लीजिए 2 फैक्टोरियल नहीं, या तो फिर वो 3 हॉर्सेस एक साथ आ जाए विच इज 1 वे, ऐसा होगा। ये एक केस हो जाएगा H1 H2 के टॉप पे आने का। बट H1 H2 क्यों साथ साथ ही हमेशा ही टॉप पे होंगे? उनके साथ कोई और भी आ सकता है नहीं, आने दीजिए। और हम अस्यूम करते हैं कि H1 H2 के साथ कोई एक और हॉर्स आ रहा है टॉप पे, तो वो जो हॉर्स है वो यहाँ से आप 3 में से सेलेक्ट कर सकते हैं कितने वेज में? 3 चूज 1। अब बचे कितने हॉर्सेस आपके पास? 2। उनको आप कितने वेज में अरेंज कर लेंगे आपस में? या तो 2 फैक्टोरियल वेज, या फिर दोनों क्या हो जाए आपके पास? साथ साथ आ जाए, राइट। ये दूसरा केस। अब फिर क्या हो जाए? H1 H2 टॉप पे है, एक हॉर्स के साथ नहीं, 2 हॉर्सेस के साथ, तो अब क्या करोगे? फिर आपने 2 हॉर्स को सेलेक्ट कर लिया, यहाँ से 2 हॉर्स को यहाँ पुट कर दिया, कितने बचे हॉर्स आपके पास? 1, एक ही वे होगा उसको करने का, ठीक है। या फिर क्या हो जाए कि आप यहाँ से तीनों हॉर्स सेलेक्ट कर लीजिए, विच मीन्स H1 H2 H3 H4 H5, और ये सभी इन्हीं में टाई हो जाए, सभी टॉप पे ही है, ठीक है। फिर भी आपके पास H1 H2 टॉप पे हो गया। ये एक केस और ऐड कर लीजिए, उनके आंसर है 274, आपके पास आंसर 274 आ जाएगा इन सारे केसेस को ऐड करने के बाद। नाउ गेट द प्रोबेबिलिटी, आप प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए। इट्स 274 अपॉन 541, the required number. Now, when I told you that we are going to run the marathon, I hope that you realize that it's not a job which will be taken up by horses. We were running a marathon, right? Alright, so moving on then. The area bounded by curves y is equal to ln x, y is equal to ln mod of x, mod of ln x and blah. तो देखिए ये 4 कर्व्स दे रखे नहीं, y is equal to ln x, y is equal to ln mod of x, mod of ln x, ln mod of x. ये कर्व्स बन क्या जाएंगे? बिगिन विद ln x, ln x से शुरू करोगे, ऐसा बनेगा। फिर ln mod of x ये बनाओगे भाई, तो इसका रिफ्लेक्शन यहाँ ले लोगे फिर, ठीक है। पॉजिटिव बनाना है तो ये क्या बन जाएगा? ये इसका रिफ्लेक्शन ऐसा कुछ इन सब को बना लीजिए, तो इसका रिफ्लेक्शन ये और इसका रिफ्लेक्शन ये। तो देखिए वो जो एरिया में इंटरेस्टेड है वो ये एरिया है, यही है। फिर और देखिए ये सारे एरिया सिमेट्रिक है, ठीक है। तो मैं कोई एक ले लेता हूँ, I'll take just one, मैं एक ले लेता हूँ। लाइक मैं mod of ln x निकालूंगा, इंटीग्रल कहाँ से निकालूंगा? फ्रॉम 0 to 1, और इसका 4 टाइम्स कर दूंगा, इसका मैं 4 टाइम्स कर दूंगा, और यही मेरे पास एरिया आ जाएगा नहीं।
मैं कह रहा हूँ कि देखिए ये सारे एरियाज आपको निकालने हैं। अब क्या ये सारे एरिया सिमेट्रिक है? कोई एक एरिया कोई एक एरिया निकाल दो और उसका 4 टाइम्स कर दो। अब देखो ये कर्व क्या है, मॉड ऑफ ln x का पार्ट है, तो मैं मॉड ऑफ ln x निकाल रहा हूँ कहाँ से, फ्रॉम 0 to 1। तो ये जो भी एरिया आया इसका 4 टाइम्स आपने कर दिया। फाइन, इवेलुएट दिस इंटीग्रल। आप ये इंटीग्रल इवेलुएट कर लेंगे। अगर आपको पता ही है कि ये एरिया 1 होता है ln x में, तो आप जानते हैं कि आंसर 4 हो जाएगा। नहीं, यूज बाय पार्ट्स यूज कीजिए, आंसर आ जाएगा। फाइन, चलो मूविंग ऑन देन। मूविंग ऑन टू 58 देखिए, इंटीग्रल पूछा -1/2 to 1/2 greatest integer of x of log of 1 plus x upon 1 minus x dx। ठीक है, तो जैसे ही माइनस ए टू ए लिमिट्स होती है तो यू आर बिट अवेयर कि ऐसा तो नहीं कि ऑड फंक्शन है, इवन फंक्शन है। नहीं, लुक एट दिस फंक्शन, आई लाइक टू बिलीव दिस इज एन ऑड फंक्शन। क्यों? देखो, अगर f(x) आप ले लोगे log of x 1 plus x upon 1 minus x, तो f of minus x क्या हो जाएगा? इट्स log of 1 minus x upon 1 plus x। नहीं, ऐड कर दो इन दोनों को, तो इन log और इनसाइड अंदर क्या आ जाएगा? इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? 1 एंड log 1 इज 0। मतलब f of x plus f of minus x इज 0। मतलब ये फंक्शन क्या आ गया आपके पास? ऑड। तो बिटवीन माइनस ए एंड ए इसका इंटीग्रल क्या हो गया आपके पास? 0, व्हिच मींस दैट सिंपली ये बचा आपके पास दैट -1 to 1/2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x dx। अब देखो यार, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, आप जानते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर अपनी वैल्यू चेंज करता है सारे इंटीग्रल पॉइंट्स पे, और आपके पास जो लिमिट्स है -1/2 to 1/2, उसमें एक बीच में इंटीजर आ भी रहा है 0, तो हमें करना नहीं चाहिए कि इसको स्प्लिट कर लेना चाहिए उस इंटीजर के अबाउट। सो आई विल से दैट दिस प्रॉब्लम इज एक्चुअली -1/2 to 0 greatest integer of x dx plus 0 to 1/2 greatest integer of x dx। अब look at this number here, इस नंबर को यहाँ देख लो। अगर x की वैल्यू लाई कर रही है बिटवीन -1/2 एंड 0, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा? -1। तो ये इंटीग्रल हो गया आपके पास -1/2 to 0 dx। अगर आपके पास ये वैल्यू लाई कर रही है, x की वैल्यू लाई कर रही है बिटवीन 0 एंड 1/2, तो इस नंबर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो 0 into anything is 0। सिंपली ये इंटीग्रल बचा, इवैल्यूएट कर लीजिए इंटीग्रल, यू विल गेट द आंसर। 59 ऑलराइट, सो अब देखो px दे रखा है इन्होंने, a1 x square plus a2 x to the power 4 all the way up to an x to the power 2n, है ना। अब ये पॉलिनॉमियल दे दिया, रियल वेरिएबल x है, एंड द कंडीशंस फॉलो करती है कि a1 a2 and so on an। द फंक्शन px इज मिनिमम मैक्सिमम, यही सब पूछना है। ऑफ कोर्स आप जानते हैं फंक्शन पॉलिनॉमियल है तो डिफरेंशिएबल है, तो हम डेरिवेटिव्स में ही जाने वाले, राइट। तो एक बार डिफरेंशिएट कर दो, p'(x) क्या आ जाएगा आपके पास? मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 2a1x प्लस ये क्या आएगा आपके पास? 4a2x³ एंड सो ऑन ऑल द वे अप टू ये क्या आएगा? देखिए आपके पास 2n x की पावर 2n - 1, ऐसे कुछ आएगा। अब एक बार चेक भी करते हैं कि इसके कुछ क्रिटिकल पॉइंट्स है भी या नहीं है। आप जानते हैं कि बिकॉज ये भी एक पॉलिनॉमियल है, तो ऐसा कोई पॉइंट होगा नहीं जहाँ पे ये नॉन डिफरेंशिएबल होगा। तो अगर इसके क्रिटिकल पॉइंट्स हैं तो वो इस वजह से होंगे बिकॉज डेरिवेटिव 0 होगा, राइट। पुल करो यहाँ से, इस पूरे एक्सप्रेशन से x पुल करो, तो क्या आएगा? देखो आपके पास 2a1 प्लस ये क्या आएगा आपके पास? 4a2x² प्लस सो ऑन 2n an, और ये क्या आ जाएगा आपके पास? x की पावर 2n - 2। अब अगर आप p'(x) 0 पुट करते हो, डोंट एग्री, एक तो वैल्यू आएगी आपके x इज इक्वल टू 0, नहीं, और दूसरी वैल्यू अगर एग्जिस्ट करती है तो वो यहां से आनी चाहिए, बट ये कभी 0 नहीं होगा, नहीं, बिकॉज इस कंडीशन की वजह से। देखो, क्या ये नंबर सारे पॉजिटिव हैं? और ये जो आप x की पावर्स देख रहे हैं वो सारे क्या है? मल्टीपल ऑफ 2 है। तो आप उसमें x की कोई भी वैल्यू पुट कर लीजिए, नेगेटिव और पॉजिटिव, ये सारी वैल्यूज क्या ही होने वाली है? पॉजिटिव। तो इन सारी पॉजिटिव नंबर्स का सम 0 तो कभी होगा नहीं, तो मतलब इसकी वजह से आपके पास x की कोई रियल वैल्यू नहीं आएगी। तो इसका सिर्फ एक ही क्रिटिकल पॉइंट है, वो 0 है, नहीं। तो हम चेक कर लेते हैं यार कि 0 के आसपास, और आपने मुझे ये भी देख लिया कि यार ये जो क्वांटिटी है ये हमेशा पॉजिटिव है, तो देख लेते हैं फिर कि डेरिवेटिव 0 के आसपास कैसे साइन चेंज कर रहा है। तो अगर मैं डेरिवेटिव का साइन देखूं, अगर मैं 0 से थोड़ा सा छोटा नंबर ले लूं, थोड़ा सा छोटा, ये तो पॉजिटिव है ही, बट ये क्या हो जाएगा? अगर x 0 से थोड़ा सा छोटा है तो ये नेगेटिव हो गया, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या आ जाएगा? नेगेटिव। और
अगर मैं x की वैल्यू 0 से थोड़ी सी बड़ी ले लूँ, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो 0 के अबाउट डेरिवेटिव कैसे चला गया? फ्रॉम क्या गया फिर आपके पास? नेगेटिव टू पॉजिटिव, ऐसे ही गया फिर। फ्रॉम नेगेटिव टू चला गया आपके पास क्या? पॉजिटिव, राइट? तो अब क्या आ जाएगा आपके पास? अब मैं क्या कर लूँ? सो ये जो पॉइंट आ गया आपके पास, वो किसका पॉइंट आ जाएगा फिर? मिनिमम का पॉइंट, राइट? द अदर वे कुड हैव बीन, दूसरा तरीका ये आप कर सकते थे दैट इसका आप डबल डेरिवेटिव ले लेते, बट डबल डेरिवेटिव टेस्ट इट्स फाइन, ठीक है, बट आई होप दैट यू नो द पिटफॉल्स। व्हाट इफ अगर डबल डेरिवेटिव 0 ही आ जाता? इस केस में नहीं आएगा। अब डबल डेरिवेटिव ले लीजिए तो देखो p डबल डैश 0 जो आएगा वो 2a1 आ जाएगा सिंपली, नहीं, विच इज पॉजिटिव, तो मतलब वो पॉइंट ऑफ मिनिमा है, विच इज फाइन, इस केस में चल जाएगा, बट हम डेरिवेटिव के साइन से ही बता सकते हैं। ऑलराइट, वी कम टू द लास्ट प्रॉब्लम। हम लास्ट प्रॉब्लम पे आ जाते हैं। इट्स नंबर 60, हम 60 पे आ गए। The sides of an equilateral triangle are increasing at the rate 2 centimeter per second. देखिए साइड के इंक्रीज करने का रेट दे दिया 2 centimeters per second, नहीं, the rate at which area increases, एरिया के इंक्रीज करने का रेट पूछ रहे हैं। साइड को मैंने ए से डिनोट किया, एरिया को मैं कैपिटल ए से डिनोट कर रहा हूँ। ये निकालना है आपको। अब उससे पहले आपको ये पता है ये होता क्या? √3/4 a स्क्वायर, ये होता है, नहीं? तो पूछा जा रहा है आपसे कि डी ए डी टी और डी ए क्या है आपके पास? √3/4 a स्क्वायर। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आगे क्या जाएगा आपके पास? √3/4 इंटू डेरिवेटिव ऑफ a स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यही है ना फिर, विच इज √3/4 इंटू 2a इंटू डी ए डी टी। अब कुछ पता है हमें? हाँ पता है, डी ए डी टी की वैल्यू दे रखी है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड, नहीं, ए की वैल्यू उन्होंने कुछ दे रखी है, क्या दे रखी है? 10 सेंटीमीटर। पुट कर लीजिए, आंसर आ जाएगा √3/4 इंटू 2 इंटू 10 into 2 square units per second. ये आ जाएगा आंसर, and there you have your answer, and which means that we are done with the paper, और यहीं पे discussion खत्म हुआ। All right, thank you.